अस्सलाम वालेकुम इरफान। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। आपको मेरी आवाज़ आ रही होगी। वालेकुम सलाम। अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। आप कैसे हैं? कैन यू हियर मी क्लियरली? आई कैन हियर यू क्लियरली। परफेक्ट। एब्सोल्युटली। हम लाइव आ चुके हैं जी, फेसबुक पे। और हमारे साथ कुछ स्टूडेंट्स भी आ चुके हैं जी। और स्टूडेंट्स के कमेंट्स भी आना शुरू हो गए हैं जी। हादिया फ़ारूक, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम कायनात। वालेकुम अस्सलाम। गुड, सो वी हैव अ फ्यू स्टूडेंट्स हु हैव ऑलरेडी जॉइंड अस। We can start in a couple of minutes. In the meantime, make sure that you have your tablet working and that you can write on the screen as well. परफेक्ट जस्ट गिव मी अ मोमेंट। Sure. Right. Thank you students for joining us for today. आज हम digital SAT के बारे में बात करेंगे and we'll also handle whatever questions you may have about the digital SAT exam. The idea is to give you information about why you should be appearing for the SAT exam, what the SAT exam is all about, and if you want to prepare for it, how you prepare for it, and what are the various elements of the SAT that you need to be aware of, and obviously what you need to do in order to get a great score, inshallah. So that is the plan for today. Irfan and I will be doing this together. Hopefully, it should not take us longer than about 45 minutes. That's the plan. But let's see, depends upon how many questions we get and how long it takes for us to run through all the different aspects of the SAT exam. But in the meantime, please try to keep your questions to the point so that when we deal with them, we talk specifically about the SAT. Walaikum Salam, Daniel. Thank you for your message. Hadia Kareem, sir, please also brief us about the LCAT in today's session, if possible. Okay. The LCAT. Well, that is not really a part of the presentation today, but we will try to touch upon it. But the key idea is that the LCAT alum says is based on the SAT. So if you prepare for the SAT, you're supposed to be prepared for the LCAT as well. However, we know that the reality is different. The LCAT is different in many ways from the SAT. So we're keeping today's presentation focused mainly on the SAT exam. Do you plan to take the SAT, Hadia? Please do let us know in the comments. ऑलराइट, शैल वी स्टार्ट? Absolutely, 100%. Okay. So welcome to the Anis Hussain Digital SAT information session. And as I mentioned to you, the focus today is going to be on how to prepare for the SAT and what the various aspects of the SAT are. Uh, my name is Mohammed Salman Ghaffar. I am the CEO of Anis Hussain's organization. I've been teaching test prep courses since 1995, and one of the first courses that I taught at Anis Hussain when I was only 18 years old was the IBA test prep and the SAT test prep. So I have had extensive experience teaching for SAT, for IBA, for LUMS, for the various tests, for various versions of the LCAT, GMAT, GRE, LSAT. LSAT is basically a law school admissions test in America. CBM, Zabist, and the local NTS CAT. These are the tests that my experience has been. Irfan, why don't you go ahead and tell them about yourself? Assalamu alaikum to all of you. As you can see, my name is Muhammad Irfan Ghaffar. I did my O levels back in the year 98 and A levels in 2000. And I started preparing students for various university admission tests in the year 2000, immediately after taking my A levels. I joined IBA for my BBA program, completed my BBA in December of 2003 and my MBA in December of 2004. I am a marketing major. I've been teaching for these past 23 years. After graduating from IBA, I've also worked in the corporate sector briefly for PSO and for Habib Bank. And then I switched over to teaching full time. I've been associated with the organization Anis Hussain for the past 23 years, Alhamdulillah. And my area of expertise is preparing students for local business universities, including the IBA test and the LUMS test, and for international tests, including the SAT, the GMAT, and the GRE. Great. Thank you, Irfan, for the very comprehensive introduction.
So as you can see, we're both IBA graduates. We keep telling everybody that we have more IB graduates on our faculty than any other institute in Pakistan, and that's something that we are very, very proud of. We will talk more about the faculty towards the end as well. Okay, so what is the SAT? Well, the SAT is basically a standardized admission test that is mainly used by universities in the USA and also many universities in Pakistan. It was actually launched in 1926, and it is owned by a company, a non-profit company called College Board. And there have been various names of the SAT. It was initially launched as the Scholastic Aptitude Test, later renamed as the Scholastic Assessment Test and the SAT Reasoning Test, and simply the SAT. So now if you were to ask them directly, they would say, well, the SAT stands for the SAT or the SAT, whatever you want to call it. Some people refer to it as the SAT exam, others refer to it as the SAT exam. The latest version of the test is now known as the digital SAT. ठीक है जी, तो ये तो इसकी एक छोटी सी हिस्ट्री हो गई है. It's been around for almost 100 years, as you can see. There have been various versions of it, various iterations of it, and the test, the scoring used to be 1,600 points, changed to 2,400 points, has come down to 1,600 points again. We are now going to talk about the most current format, which is the digital SAT. I have actually taught for 3 versions of it. In fact, 4 versions of it, and so has Irfan. Okay, so that is the history behind the SAT exam, but the one that you will now be doing is the digital SAT. So let's talk about why you should take the SAT. Irfan, I'm going to let you take the lead here. Why should you take the SAT? So that's a very common question that we get from students कि भाई हम SAT क्यों दें? Why should we take the SAT? Where is it helpful? पहला सवाल तो ये उठता है, पहला पहला इसका जवाब तो ये बनता है कि जी when you are applying to various universities locally and internationally, खास करके अगर आप top universities apply कर रहे हैं in the US, so you can see that there are students applying from all over the world. और जब उन यूएस यूनिवर्सिटीज़ को उन स्टूडेंट्स की परफॉर्मेंस को कंपेयर करना है कि भाई कौन सा स्टूडेंट बेहतर परफॉर्मर है, कौन सा स्टूडेंट अच्छा परफॉर्म नहीं कर पा रहा, तो बेसिकली वो स्टूडेंट्स जो हैं इतने सारे बैकग्राउंड से आए हुए होते हैं. अगर आप पाकिस्तान की बात कर लें, कराची की बात कर लें, तो स्टूडेंट्स जो है वो इंटरमीडिएट बैकग्राउंड से आते हैं, हाई स्कूल बैकग्राउंड से आते हैं, ए लेवल बैकग्राउंड से आते हैं, आईबी सिस्टम से आते हैं. सो इट्स अ वेरी डिफिकल्ट टास्क के वो अमेरिकन यूनिवर्सिटीज बैठ के उन सारे स्टूडेंट्स के वेरियस बैकग्राउंड्स को सिमिलर थ्रेशोल्ड पे लाके कंपेयर कर सकें. सो व्हाट दे डू इज दे आस्क यू टू टेक अ स्टैंडर्डाइज्ड एडमिशन टेस्ट, द एसएटी, और उसकी बेसिस पे वो कंपेयर कर सकते हैं कि कौन सा स्टूडेंट उस टेस्ट पे बेहतर परफॉर्म कर रहा है और कौन सा स्टूडेंट उस टेस्ट पे परफॉर्म नहीं कर पा रहा. सो इट्स अ स्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट डिजाइन टू मेजर पर्टिकुलर स्किल्स for candidates applying all from all over the world. Excellent, excellent. And that's why you really need to be taking it. As you can see, यहाँ पे हमने एक छोटी सी list रखी हुई है of the kinds of universities in Pakistan that accept the SAT. And the most important ones are listed here. Those are IBA, LUMS, CBM, Zabist, Habib University, FAST, NUST, LSE, which is the Lahore School of Economics, PIAS, and ITU Lahore. These are the most important universities, in our opinion, that accept the SAT score instead of the normal admission test. So you can take their own admission test, or you can apply through the SAT. In fact, for a very long time, LUMS ने अपना टेस्ट ही खत्म कर दिया था और सिर्फ SAT के बेसिस पे एडमिशंस ऑफर कर रहे थे. पिछले 2-3 सालों से उन्होंने अपना टेस्ट वापस लेना शुरू किया है. ठीक है जी, so ये तो reason हो गया why you have to take the SAT. I don't think we have to convince you for that. Most of you will probably want to do it. एक advantage SAT की preparation करने का ये भी होता है और देने का ये भी होता है कि it also prepares you for a lot of other universities admissions tests as well. For example, LUMS ये claim करता है कि हमारा जो टेस्ट है यानी उनका जो अपना टेस्ट है जिसको वो LCAT कहते हैं, it's based on the SAT. So it's a pretty useful test to prepare for and to appear in. So I basically urge all my students and then all my relatives and my friends' kids and my own kids, I've basically made sure that they all prepare for it and they all take the SAT as well.
अच्छा जी, so that's why you should take the SAT now यहाँ पे एक when छोटा सा क्वेश्चन भी उठता है स्टूडेंट्स का कि भाई कहाँ कहाँ ये सैट एप्लीकेबल है। तो प्रीडोमिनेंटली चूंकि इट इज़ कंडक्टेड बाय अ बॉडी कॉल्ड द कॉलेज बोर्ड, जैसे कि आपको सलमान भाई ने बताया। तो वो बॉडी यूएस में बेस्ड है। दैट्स वाई एसएटी की प्रीडोमिनेंट एक्सेप्टेबिलिटी जो है वो यूएसए में है, बट उसके अलावा इट इज़ एक्सेप्टेबल बाय यूनिवर्सिटीज ऑल अराउंड द वर्ल्ड। तो यूके में, कनाडा में, ऑस्ट्रेलिया में टॉप यूनिवर्सिटीज या तो सैट मांगती हैं, या अगर सैट नहीं भी मांगती तो इफ़ यू स्टिल टेकन इट एंड यू हैव अ गुड स्कोर एंड यू अप्लाई ऑन द बेसिस ऑफ दैट सैट, तो वो आपको एडमिशन्स में एंड स्कॉलरशिप्स में दोनों चीज़ों में हेल्प कर सकता है। एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली करेक्ट। इनफैक्ट आप सही कह रहे हैं, कैनेडियन यूनिवर्सिटीज़ के लिए हालांकि रिक्वायरमेंट नहीं है, बट अगर आप टेस्ट दिया हुआ है और अपनी एप्लीकेशन में ऐड कर देते हैं तो एक एडिड एडवांटेज मिल जाता है। आपने बिल्कुल ठीक कहा जी। ग्रेट। अच्छा जी, बिल्कुल, बट बात ऑब्वियसली यही है कि पाकिस्तानी यूनिवर्सिटीज़ के लिए प्रिडोमिनेटली देना है या अमेरिका के लिए देना है आपने। अच्छा जी, द नेक्स्ट थिंग इज व्हेन कैन यू अपीयर फॉर द सैट एग्जाम। सो सैट जो है वो साल में मल्टीपल टाइम्स ऑफर होता है। मेनली आप देख सकते हैं कि अगस्त, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, मार्च, मई और जून, ये 7 टाइम्स है जो आप सैट का एग्ज़ाम अपीयर हो सकते हैं इस पर्टिकुलर स्कूल ईयर में। और सैट की जो डेट्स हैं वो स्कूल ईयर के हिसाब से आती हैं। सो इस पर्टिकुलर स्कूल ईयर में 2023 में 4 दफ़ा टेस्ट ऑलरेडी हो चुका है इन डेट्स पे, अगस्त, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर में। और अब जो अगला टेस्ट है जिसमें आप अपीयर कर सकते हैं, उसका टेस्ट डेट है मार्च 9 और फिर मई 4 और फिर जून 1। ये हैं सारे के सारे न्यू ईयर के, ठीक है जी। और उनकी रजिस्ट्रेशन डेडलाइन भी मौजूद हैं, 27 फेब, अप्रैल 23 एंड मई 21। इसमें ऑब्वियसली सवाल ये उठता है कि आपको कब अपीयर होना चाहिए। आई जस्ट कम टू दैट। सो ये टेस्ट डेट्स हैं जी। यहाँ पे दो और बातें मैं स्टूडेंट्स के लिए ऐड कर दूं। नंबर वन ये है कि ये जो रजिस्ट्रेशन डेडलाइंस हैं, जनरली स्पीकिंग कराची के जो भी एप्लीकेंट्स हैं उनके लिए ये रजिस्ट्रेशन डेडलाइंस कुछ खास मान नहीं रखती, बिकॉज कराची में जनरली सैट की सीट्स बहुत लिमिटेड होती हैं। तो आप में से जो स्टूडेंट्स कराची में सैट दे रहे हैं, इफ़ यू डिसाइडेड ऑन अ पर्टिकुलर डेट, आप कॉलेज बोर्ड की साइट पे जाके एज सुन एज पॉसिबल रजिस्ट्रेशन कर लें, सीट लॉक कर लें, ताकि आप को लास्ट मोमेंट पर रजिस्ट्रेशन करके ऐसा ना हो कि आपको कराची में सीट ना मिले और आपको लाहौर या इस्लामाबाद जाके देना पड़े। एक चीज़ बिल्कुल। और भी ऐड कर दें कि जो ये स्टूडेंट्स लम्स या आईबी अप्लाई करना चाह रहे हैं एसएटी की बेसिस पे, अगर आप बस पिछली स्लाइड स्टूडेंट्स को दिखा दें, तो स्टूडेंट्स को ये बात जानना ज़रूरी है कि इफ़ यू वांट टू अप्लाई टू लम्स, ये जो मार्च वाला सैट है ये आखिरी सैट है जो लम्स के लिए एक्सेप्टेबल होगा फॉर द अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम स्टार्टिंग इन फॉल 2024। सो दिस इज़ द लास्ट सैट जो लम्स के लिए एक्सेप्टेबल होगा। और अगर आप आईबी अप्लाई कर रहे हैं तो आईबी राउंड 1 के लिए ये जो दिसंबर का सैट था ये आखिरी सैट था जो एक्सेप्टेबल था, और आगे के जो सैट्स हैं वो राउंड 2 के लिए, आईबी राउंड 2 के एडमिशन्स के लिए एप्लीकेबल होंगे। एब्सोल्युटली, बिल्कुल बिल्कुल ठीक कहा आपने इरफान। और ये फॉल 2024 की एंटिसिपेटेड सैट टेस्ट डेट्स हैं, तो आप ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि साल में 7 टाइम्स आप ये टेस्ट में अपियर हो सकते हैं। तो आइडियली आपको कब अपियर होना चाहिए? वेल, व्हेन शुड यू टेक द एसएटी? So ideally, it's best that you take the SAT in the first year of your A levels or intermediate, ताकि आपके पास sufficient time मौजूद हो अगर आप उसको रीसेट करना चाहें। या आपके पास स्कोर पहले से मौजूद हो ताकि पर आप लास्ट में तमाम चीज़ें ना कर रहे हो। सो मैं तो तमाम स्टूडेंट्स को रिकमेंड करता हूँ कि जैसे ही आप ओ लेवल्स कंप्लीट करें तो आप फौरन से बैठें और तैयारी करें, और एज सुन एज पॉसिबल आप एससीटी का एग्ज़ाम जो है वो उसमें अपियर हो जाएं। यानी कि ओ लेवल्स और ए लेवल्स के दरमियान का जो वक्फा होता है, दैट इज़ एन एक्सलेंट टाइम, या मैट्रिक और इंटर के दरमियान जो वक्फा होता है, दैट्स एन एक्सलेंट टाइम टू प्रिपेयर फॉर द एससीटी एग्जाम। खुदा ना खास्ता उस टाइम पे प्रिपेयर नहीं किया, हो सकता है आप में से बहुत सारे लोग जो भी हमारे साथ मौजूद हैं ऑनलाइन, आप ये कहें कि नहीं हम तो ऑलरेडी फर्स्ट ईयर में आ चुके हैं या सेकंड ईयर में आ चुके हैं। वेल, तो फिर तो आपके पास जो ऑप्शन है वो यही है कि एज सुन एज पॉसिबल अपियर हो जाएं। बट आइडियली स्पीकिंग, इफ यू आस्क मी, if you are somebody who's in O levels or if you're a parent of a child who is in O levels, then as soon as the O levels are done, आप सैट की तैयारी करा के सैट में अपियर हो जाएं, ठीक है जी। सो दैट इज द इम्पॉर्टेंट थिंग। और बेस्ट टाइम टू अपियर फॉर द एसएटी इज अगस्त, अक्टूबर, नवंबर एंड दिसंबर। इसकी वजह ये नहीं है कि टेस्ट यहाँ पे आसान होता है या मुश्किल होता है। इसकी वजह सिंपली ये है कि आपके पास एक जो फोकस करने का सही टाइम होता है वो यूजली अपने यूनिट स्कूल के
फर्स्ट हाफ ऑफ द स्कूल ईयर के अंदर मौजूद होता है, जहाँ पे आप सही से प्रिपेयर कर सकते हैं। सेकेंड हाफ में यूजली आप अपने एग्जाम्स की तरफ जा रहे होते हैं और आप उसके ऊपर फोकस कर रहे होते हैं, और डेडलाइंस के हिसाब से भी एक बेहतर ऑप्शन रहता है। इरफान, यहाँ पे कुछ आप ऐड करना चाहेंगे? नहीं, बिल्कुल, बिकॉज काफ़ी स्टूडेंट्स ये कंफ्यूज हो रहे होंगे कि भाई ये बेस्ट टाइम क्यों है। तो डेफिनेटली जैसे कि सलमान भाई ने बताया, इसमें कोई पेपर आसान नहीं होता या कोई स्कोरिंग इजी नहीं होती, लीनियंट नहीं होती। बस सिर्फ ऐसा है कि उन स्टूडेंट्स को प्रॉब्ली ज़्यादा टाइम मिल जाता है प्रेपरेशन के लिए, बिकॉज उस टाइम पे स्कूल का लोड बहुत हैवी नहीं होता। यहाँ पे एक एक छोटी सी चीज़ ऐड और कर देते हैं कि व्हेन शुड यू टेक द सैट के साथ साथ हाउ लॉन्ग शुड यू टेक टू प्रिपेयर फॉर द सैट, जनरली स्पीकिंग। वैसे तो वो आगे आई एम श्योर कवर्ड है, बट एक स्टूडेंट अगर कॉम्प्रिहेंसिव प्रेपरेशन करना चाह रहा है सैट के लिए, तो ही शुड बी एबल टू टेक आउट 10 to 12 वीक्स, यानी कि 2.5 से 3 महीना अगर वो निकाल लेता है तो वो काफ़ी कॉम्प्रिहेंसिव प्रेपरेशन कर सकता है सैट के लिए। स्पेशली बिकॉज अब सैट चेंज हुआ है, तो यू नीड टू फोकस ऑन द न्यू काइंड्स ऑफ क्वेश्चंस दैट यू गेट, तो उसके लिए ज़रूरी है कि आप उसकी प्रिपरेशन प्रॉपरली कर लें। अच्छा जी, सैट का जिस तरह से जिक्र किया इरफान ने, कराची में सीट्स कम होती है, उसकी वजह की वो थी आगे सामने मौजूद है। पाकिस्तान में जो सैट के सेंटर्स हैं जहाँ पे आप सैट में अपियर हो सकते हैं, वो आप देख सकते हैं कि अबाउट 25 ऑफ देम। उन 25 में से कराची में सिर्फ और सिर्फ 4 हैं। और उसके अलावा जो मेजॉरिटी चंक है वो इस्लामाबाद और लाहौर में है। और इस वजह से कराची में सीट्स बहुत जल्दी फिल हो जाती हैं। आई विश देयर वर मोर सीट्स इन कराची फॉर एसएटी, बट देयर आरंट। देयर वाज वन अदर सेंटर जहाँ पे सैट होता था, बट फिल वक्त वो अनलिस्टेड दिखा रहा है, which was the Crown Plaza Hotel, but अब वो अनलिस्टेड दिखा रहा है, रीजन प्लाजा होटल। सो देयरफॉर अब जो है वो ये आपके पास लिस्ट मौजूद है। अगर आप कराची से हैं तो उसका मतलब यही है कि आपके पास रजिस्ट्रेशन की जो विंडो है वो बहुत शॉर्ट होती है, तो काइंडली गुजारिश ये है कि फ़ौरन से रजिस्ट्रेशन करवा लिया करें, अदरवाइज आपको मसले की बात नहीं है, आप इस्लामाबाद लाहौर जाके भी सैट का एग्जाम दे सकते हैं, कोई ये नहीं, ज़रूरी नहीं है कि आप अपने शहर से ही देंगे। तो ये आपके पास टेस्टिंग सेंटर्स मौजूद है। ठीक है जी। अच्छा जी, लेट्स गो ऑन। यहाँ पे तो कोई खास चीज़ इरफान आपके लिए ऐड करने के लिए नहीं होगी, सो लेट्स मूव ऑन। अच्छा जी, सैट की फी कितनी होती है जी? सो एज वी मेंशन्ड बिफोर, रजिस्टर ASAP, सीट्स रन आउट वेरी क्विकली इन कराची स्पेशली, बहुत मसला होता है जी। और फी जो है वो आपकी $103 है, और उसको रजिट पे करने के लिए आपको एक क्रेडिट कार्ड की ज़रूरत है, नॉट अ डेबिट कार्ड बट अ क्रेडिट कार्ड, दैट्स व्हाट यू नीड टू मेक श्योर दैट यू आर एबल टू पे। ज़रूरी नहीं है कि वो क्रेडिट कार्ड आपका अपना हो, आपके किसी रिलेटिव का, आपके पेरेंट्स का, रिलेटिव्स का, या आपके किसी फ्रेंड का भी हो सकता है। एज लॉन्ग एज यू हैव परमिशन टू यूज दैट कार्ड, यू and that card allows you to do a foreign exchange transaction, you should be able to use that to register for the SAT exam. काफ़ी हमारे पास स्टूडेंट्स आते हैं जो रिक्वेस्ट करते हैं कि सर क्या आप हमारे बिहाफ पे कर सकते हैं, तो हम कर देते हैं जी। हम हमारे कार्ड के ऊपर अच्छी खासी सैट की रजिस्ट्रेशन जाती हैं कई दफ़ा। तो ये एक चीज़ है जो हम आपको हेल्प आउट कर सकते हैं इफ़ यू नीड सो, बट बेसिकली यू नीड टू हैव अ क्रेडिट कार्ड टू मेक श्योर दैट यू मेक द पेमेंट्स। यहाँ पे इरफान आप कुछ ऐड करना चाहेंगे? काफ़ी दफ़ा स्टूडेंट्स के जो क्रेडिट कार्ड्स होते हैं उनकी फैमिली मेम्बर्स के, वो फॉरेन ट्रांजैक्शंस के लिए इनेबल नहीं होते, तो वो थोड़ा सा परेशान होते हैं। उसका सिंपल प्रोसेस ये है कि आप अपने बैंक के हेल्पलाइन को फ़ोन करेंगे और उनसे रिक्वेस्ट करेंगे कि आपके क्रेडिट कार्ड पे फॉरेन ट्रांजैक्शंस और ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस, ये दोनों चीज़ें इनेबल कर दें। वंस दे इनेबल दोस्त, तो फिर यू शुड बी एबल टू डू द ट्रांजैक्शन। Absolutely, absolutely. So please make sure that you use a card that has these things enabled, or that has the facility to allow you to enable these things. ठीक है जी? So $103 is what you're going to be paying to register for the SAT exam. Okay, Ji. Let's move on, Ji. How do you register for the SAT? Well, this is the website, satsuite.collegeboard.org/digital, या सीधा सीधा collegeboard.org पे चले जाएं और वहां जाके डिजिटल सैट पे क्लिक कर लें, ये पेज खुल जाएगा। You have to create a student account and then you register for the digital SAT. Simple as that. Should not take you very long to create an account. उसमें आपकी डिटेल्स मांगेंगे, वो डिटेल्स प्रोवाइड कर दीजिए और फिर आपने रजिस्ट्रेशन स्टार्ट कर देनी है। सो अकाउंट आप अभी बना लीजिए फ़ौरन से, ताकि आपको जब भी रजिस्टर करना हो उस वक्त आपको अकाउंट ना बनाना पड़े। इट्स अ फ्री अकाउंट, एनीबडी कैन मेक इट, सो काइंडली मेक एन अकाउंट फॉर योरसेल्फ एंड मेक श्योर दैट यू आर रेडी
अकाउंट बनाते हुए एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, और वो चीज़ जो है वो लिखी हुई है नीचे। मैं इनफैक्ट अलाउ करूंगा इरफान को कि वो जरा एक्सप्लेन कर दें इस बात को। इरफान, ये जो पॉइंट लिखा हुआ है बॉटम पे आपने, द नेम शुड मैच एग्जैक्टली द वे इट इज स्पेल्ड इन योर पासपोर्ट, व्हाई इज दैट सो इम्पोर्टेंट? जी, गो अहेड प्लीज। एक्चुअली होता यह है कि काफ़ी स्टूडेंट्स जब स्टूडेंट अकाउंट बना रहे होते हैं तो वो अपना नाम वेगली एंटर कर देते हैं। वो इस बात का ख्याल नहीं रखते कि वो नाम पासपोर्ट से मैच कर रहा है या नहीं कर रहा। सो यहाँ पे दो बातें बहुत इंपॉर्टेंट हैं। पहली बात तो यह है कि नाम पासपोर्ट से मैच करना ज़रूरी है। और ज़रूरी इस तरह से है कि पासपोर्ट अगर आप खोलेंगे अपना तो उस पर एक गिवन नेम होगा और एक सरनेम होगा। तो जो आपके पासपोर्ट पे गिवन नेम लिखा हुआ है वो आपने एज इट इज़ कॉपी पेस्ट करना है as your first name while registering for the SAT। जो गिवन नेम में लिखा हुआ है वो फर्स्ट नेम में आप कॉपी पेस्ट कर देंगे, और जो पासपोर्ट में सर नेम में लिखा हुआ है वो आप लास्ट नेम में कॉपी पेस्ट कर देंगे। अब सवाल ये उठता है कि ये मैच करना क्यों ज़रूरी है। तो काफ़ी स्टूडेंट्स इस बात से वाकिफ नहीं होते कि पाकिस्तानी एप्लीकेंट्स के लिए और पाकिस्तानी टेस्ट टेकर्स के लिए पासपोर्ट इज़ द ओनली एक्सेप्टेबल फॉर्म ऑफ आइडेंटिफिकेशन। तो जब आप टेस्ट देने जाते हैं और आपका नाम पासपोर्ट से मिसमैच करता है तो इवेंचुअली आपको एग्जामिनर कॉलेज बोर्ड वो सैट का टेस्ट देने से इनकार कर देता है। वो आपको अलाउ नहीं करता बैठने के लिए। तो यहाँ पर आपका पासपोर्ट नेम मैच करना एक्सट्रीमली क्रूशल है। जी, और सैट की रजिस्ट्रेशन के अंदर वहाँ पे ऑप्शन होता है फर्स्ट नेम, मिडिल इनिशियल और लास्ट नेम का। मिडिल इनिशियल क्योंकि हमारे पासपोर्ट्स में नहीं है तो आप उसको ब्लैंक छोड़ देते हैं, वो ज़रूरी नहीं होता। तो आपने फर्स्ट नेम वो लिखना है जो आपके पासपोर्ट में लिखा हुआ है, और लास्ट नेम वो लिखना है जो पासपोर्ट में लिखा हुआ है। हमारे पाकिस्तानी पासपोर्ट्स में एक और कॉमन मिस्टेक जो आती है वो ये आती है, कई दफ़ा वो इंसान जो जिसका पासपोर्ट होता है उसका नाम वो फर्स्ट नेम की जगह सर नेम में डाल देते हैं। अगर आपके पासपोर्ट में ऐसा कोई इशू है तो आपके पास दो ऑप्शंस हैं। एक ऑप्शन तो ये है कि आप उसी तरह से रजिस्टर करें जिस तरह से कि आपके पासपोर्ट में नाम दिया हुआ है। दूसरा ऑप्शन ये है कि अर्जेंट बेसिस पर अपना पासपोर्ट रिन्यू करवाएं, पासपोर्ट ऑफिस जाएं, उनके पास जाके उनको बताएं कि मेरे पासपोर्ट में मेरा नाम गलत लिखा हुआ है, इसको सही करें। तो वो सही कर देंगे। एंड यू शुड डू दैट एज क्विकली एज पॉसिबल, बिकॉज आपको अगर रजिस्ट्रेशन करानी है तो यू विल नीड टू मेक श्योर कि आपके पासपोर्ट का नाम और आपकी कॉलेज बोर्ड की जो अकाउंट का नेम है और जो आपके सैट टिकट पर नेम आएगा वो एग्जैक्टली सेम है। तो मैं तो आपको एडवाइस करूंगा कि अगर आपके पासपोर्ट के नाम में गलती है तो एक दफ़ा ठीक करा लीजिए, बिकॉज आपको फ्यूचर में भी उसी पासपोर्ट के ऊपर अपनी सारी एजुकेशन हिस्ट्री बेस करनी है। तो अगर नाम में अगर वही गलती है जिसका जिक्र मैंने किया कि जी फर्स्ट नेम ब्लैंक छोड़ देते हैं और नाम जो है वो सरनेम में डाल देते हैं, जो कि आई आई रियली विश कि ये ज़रा इस तरह की गलतियां ना करा करें पाकिस्तानी पासपोर्ट ऑफिस वाले। बहुत लोगों को परेशानी होती है, उसको ठीक करवा लीजिए। अच्छा जी, इसमें थिंग्स टू रिमेंबर व्हाइल रजिस्टरिंग, मेक श्योर दैट यू हैव अ वैलिड पासपोर्ट। वैलिड पासपोर्ट से मुराद ये है कि आपका पासपोर्ट एक्सपायर्ड है जिस दिन आप एग्जाम देने जाते हैं उस दिन अगर आपका पासपोर्ट एक्सपायर्ड होगा तो वो एक्सेप्टेबल नहीं होगा। तो अगर आपका पासपोर्ट की एक्सपायरी चेक कर लीजिए। अगर पासपोर्ट की एक्सपायरी करीब है तो नया पासपोर्ट रीइशू करवा लीजिए, या अगर पासपोर्ट आपका एक्सपायर्ड हो चुका है तो डेफिनेटली रीइशू करवा लीजिए। ठीक है जी। सो दैट इज समथिंग दैट इज इम्पोर्टेंट। ये ओरिजिनल पासपोर्ट ले जाना जरूरी है। कोई शनाख्ती कार्ड, कोई कॉलेज का कार्ड एक्सेप्टेबल नहीं होगा फॉर टेकिंग द एसएटी एग्जाम। ठीक है जी। सो मेक श्योर इट इज नॉट एक्सपायर्ड. They will not accept any other form of ID besides passport. And make sure that the name on your SAT admission ticket is absolutely the same as the name on your passport. ये मैंने बात repeat कर दी है. If not, you may not be allowed. और ये red में इसलिए लिखा हुआ है because there have been many cases where students have come back disappointed from the exam hall because इस बात को लोग lightly लेते हैं। मैं आपको कहूंगा कि जी सबसे पहला काम आपने ये करना है कि जाके अपना पासपोर्ट निकालना है और चेक करना है कि उसकी एक्सपायरी क्या है और उसमें आपका नाम किस तरह से लिखा हुआ है। कोई कंफ्यूजन हो तो प्लीज रीच आउट टू अस, वी कैन ऑलवेज हेल्प guide you in terms of what you can and what you should do. So you can reach out to me, you can reach out to Irfan, you can reach out to Noman, you can reach out to any of our teachers, any of our campuses, and they will explain to you कि उसमें क्या इशू है, कैसे आप सॉल्व कर सकते हैं। ओके जी। अच्छा जी। बस राइट। यहाँ पे एक बॉटम लाइन ये है कि मेक श्योर कि आपका पासपोर्ट ऑन द डे ऑफ द टेस्ट वैलिड हो। एब्सोल्युटली ऑन द डे ऑफ द टेस्ट वैलिड होना जरूरी है। राइट। अच्छा जी, ये इरफान डिजिटल, ये डिजिटल क्या है जी? व्हाई डिड इट बिकम डिजिटल?
हाँ, ये सबसे बड़ी सैट के लिए और अंडर ग्रेजुएट एप्लीकेंट्स के लिए सबसे बड़ी न्यूज़ थी 2023 की, कि सैट अब पेपर बेस्ड नहीं होगा, डिजिटल होगा, विच बेसिकली मींस कि अब स्टूडेंट्स ट्रेडिशनल पेपर एंड पेन पे वो सैट का टेस्ट नहीं अटेम्प्ट करेंगे, बल्कि वो स्क्रीन्स पे बैठ के अटेम्प्ट करेंगे। वो स्क्रीन्स पे कैसे करेंगे? क्या वो अपनी स्क्रीन्स होंगी उनकी, क्या कोई उनको लैपटॉप प्रोवाइड किया जाएगा? अम, क्या टाइम फ्रेम होगी? क्या पेपर बेस्ड सैट और डिजिटल सैट में फॉर्मेट सेम है या उसमें कुछ चेंजेस आ गई हैं? उसको ग्रेड कैसे किया जाएगा? तो ये सारी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हैं जिसमें स्टूडेंट्स जनरली कंफ्यूज हो जाते हैं। सो आई थिंक आज का जो हमारा मेन फोकस है वो इसी पर है कि भाई ये डिजिटल सैट है क्या। राइट। अच्छा जी, डिजिटल सैट का फॉर्मेट। चलें इरफान जी, बता दीजिए बच्चों को डिजिटल सैट का फॉर्मेट क्या है। आई एम गोइंग टू नाउ लेट यू टेक द लीड फ्रॉम दिस पॉइंट ऑनवर्ड्स बिकॉज यू वर्क द हार्डेस्ट ऑन दिस प्रेजेंटेशन। गो अहेड प्लीज। डिजिटल सैट का जो फॉर्मेट है उसमें दो एरियाज आपके टेस्ट किए जाते हैं, जैसे कि पेपर बेस्ड सैट में टेस्ट किए जाते थे। पहला एरिया मैथ का है, दूसरा एरिया एविडेंस बेस्ड रीडिंग एंड राइटिंग का है, जैसे आप वर्बल या इंग्लिश भी कॉमनली कहते हैं। सो दो एरियाज टेस्ट किए जाते हैं, इन्हें आप दो सेक्शंस भी कह सकते हैं। सो मैथ का जो सेक्शन है उसके टोटल 800 मार्क्स होते हैं या 800 पॉइंट्स होते हैं, और जो रीडिंग एंड राइटिंग का सेक्शन है उसके भी टोटल 800 पॉइंट्स होते हैं, विच मीन्स कि आपका जो सैट का ओवरऑल स्कोर होता है दैट इज आउट ऑफ 1600। अच्छा, उस 1600 के स्कोर को मेजर करने के लिए जो टेस्ट आता है उसमें टोटल 4 सेक्शंस होते हैं, जैसे अब सेक्शंस नहीं कहा जाता बल्कि मॉड्यूल्स कहा जाता है। दो मॉड्यूल्स होते हैं मैथ पोर्शन के और दो मॉड्यूल्स होते हैं वर्बल के पोर्शन के, जैसे वंस अगेन आप वर्बल भी कह सकते हैं और रीडिंग एंड राइटिंग भी कह सकते हैं। इस पूरे टेस्ट में नेगेटिव मार्किंग नहीं होती। दिस इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट फॉर द स्टूडेंट्स टू रिमेंबर कि अगर टेस्ट पे नेगेटिव मार्किंग नहीं है तो स्टूडेंट्स जो है वो कोई क्वेश्चन ब्लैंक ना छोड़ें। बिकॉज जिस टेस्ट में भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है, चाहे वो सैट का टेस्ट है चाहे वो आईबीए का टेस्ट है, दैट मीन्स कि आप अगर कोई सवाल आपसे नहीं हो पा रहा और आप उसको गैस करते हैं तो उसको ब्लैंक छोड़ने पे भी आपको जीरो मिलेगा, और अगर आप गैस करके गलत कर देते हैं तो उस पर भी आपको जीरो मिलेगा, विच बेसिकली मीन्स कि नेगेटिव मार्किंग की कोई पेनल्टी नहीं है। सो ऑटोमेटिक सवाल गलत करने की कोई पेनल्टी नहीं है। जब सवाल गलत करने की कोई पेनल्टी नहीं है तो फिर इट इज़ इनकरेज कि जी जो सवाल आपसे नहीं हो रहे या जो सवाल के बारे में आप श्योर नहीं है उस पर भी आंसर्स मार्क कर दिए जाएं। इनफैक्ट आई वुड गो एज फार एज सेइंग कि जी यू नीड टू मेक श्योर कि आप कोई भी सवाल अनआंसर्ड नहीं छोड़ें, बिकॉज अगर कोई सवाल नहीं भी हो रहा या टाइम भी खत्म हो रहा है तो यू कैन मार्क योर आंसर्स रैंडमली। अगर कोई सवाल सही हो गया तो आपको उसके एडिशनल पॉइंट्स मिल जाएंगे। पूरे जी। सैट में कैलकुलेटर अलाउड है। पुराना जो सैट था उसमें जो दो सेक्शंस हुआ करते थे मैथ के, उनमें एक में कैलकुलेटर अलाउड था एक में नहीं था, बट अब जो डिजिटल सैट है उसमें थ्रू आउट द टेस्ट कैलकुलेटर अलाउड है। इस पर डिस्कशन करेंगे कि किस तरह का कैलकुलेटर अलाउड है, बट ब्रीफली बता देता हूँ कि आप अपना कैलकुलेटर भी लेके जा सकते हैं और साथ साथ एक ऑन स्क्रीन कैलकुलेटर भी आता है और वो ग्राफिंग कैलकुलेटर होता है। डिजिटल सैट में ऐसे नहीं है। डस्ट माउस की ऐप भी कहते हैं, और हम डस्ट माउस पे भी लोगों को प्रैक्टिस करवाते हैं। करेक्ट। एब्सोल्युटली, बिकॉज जो जो ऑन स्क्रीन आपका कैलकुलेटर आएगा ग्राफिंग कैलकुलेटर, वो डेस्मॉस का ही ग्राफिंग कैलकुलेटर होगा। तो हम स्टूडेंट्स को इनकरेज करते हैं कि जब वो सैट की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो वो अपने फ़ोन्स पे डेस्मॉस ग्राफिंग कैलकुलेटर की ऐप डाउनलोड कर लें, ताकि जब वो प्रैक्टिस कर रहे हो तो वो उस ऐप के साथ familiar हो जाएं। और सिमिलरली जब वो टेस्ट देने जा रहे हैं उससे पहले जब वो टेस्ट की प्रैक्टिस करेंगे, फुल लेंथ टाइम टेस्ट करेंगे, तो उन टेस्ट के अंदर भी वो जो कैलकुलेटर स्क्रीन पे आएगा वो डेस्मॉस का ही होगा। तो उन टेस्ट में भी इंशाल्लाह स्टूडेंट्स जो है वो फेमिलियर हो जाएंगे उस इंटरफेस के साथ साथ। राइट। एंड देन एज यू ऑल्सो मेंशन्ड कि अब ऐसे नहीं रहा, देयर इज नो मोर ऐसे। तो अब आपको कुछ नहीं लिखना। ऐसे इसकी बड़ी वेरिएशन आई थी पिछले दो इटरेशंस के अंदर, बट अब देयर इज नो मोर ऐसे। फिक्स्ड का सेक्शंस का ऑर्डर है, पहले दो सेक्शंस आपके वर्बल के हैं, फिर अगले दो मैथ के हैं। और अब रीडिंग एंड राइटिंग मर्ज हो चुका है, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। पहले रीडिंग सेक्शन अलग था, राइटिंग सेक्शन अलग था, अब रीडिंग एंड राइटिंग मर्ज होके आता है। And the test is conducted online at the testing center. You cannot do it at your home. You need to go to a testing center, and there is an app called the Blue Book Testing App जिसके थ्रू आपका SAT एग्जाम होता है। जी इरफान, डिवाइसेस के बारे में आप भी बताना चाह रहे थे इन लोगों को।
यस, तो होगा ये कि स्टूडेंट्स अपनी डिवाइसेस लेके जाएंगे, और जैसे कि आपने एक्सप्लेन किया, वो घर से टेस्ट को अटेम्प्ट नहीं करेंगे। वो अपनी डिवाइसेस लेके जाएंगे एट द टेस्ट सेंटर। मेक श्योर कि आपकी डिवाइस फुली चार्ज्ड है, साथ साथ आप चार्जर भी लेके जाएंगे ताकि आप उसको प्लग इन रखें। तो वो अपनी डिवाइसेस लेके जाएंगे, और मेक श्योर कि आप उन डिवाइसेस के साथ फेमिलियर हो। इनफैक्ट ये मेक श्योर करें कि जब आप टेस्ट से पहले जब मॉक टेस्ट दे रहे हैं, टाइम फुल लेंथ टेस्ट दे रहे हैं, तो वो आपने उन्हीं डिवाइसेस पे प्रैक्टिस किया हो ताकि आप उन डिवाइस के साथ फेमिलियर हो। ऐसा ना हो कि कहीं पर आप बहुत ज़्यादा फेमिलियर ना हो और उसमें आपका टाइम ज़ाया हो जाए एक्चुअल टेस्ट डे पे। तो वो डिवाइसेस राइट। आप लेके जाएंगे टेस्ट सेंटर पे, और वहीं पर आप टेस्ट देंगे। ऑब्वियसली वहाँ पे बाकी स्टूडेंट्स भी आए हुए होंगे, आपके लैपटॉप्स के चार्जिंग पोर्ट्स भी मौजूद होंगे वहाँ पर, वाईफाई कनेक्शन मौजूद होगा, और इन्विजिलेटर्स मौजूद होंगे जो उस टेस्ट को एडमिनिस्टर कर रहे होंगे। रिसेंटली रीजन प्लाजा में जो टेस्ट हुआ था वहाँ पे आई बिलीव यही प्रॉब्लम आया था, वाईफाई का इशू हुआ था और उस बेसिस पे काफी लोगों का टेस्ट जो है वो नहीं हो सका था। तो कोशिश करें कि आप रीजेंट प्लाजा अगर अवेलेबल दिखा भी दे तो उसको अवॉइड करें, एटलीस्ट आज के हालात में उनके वाईफाई के इश्यूज चल रहे हैं, सो अवॉइड दैट पर्टिकुलर टेस्टिंग सेंटर। अच्छा जी। इनफैक्ट जो अगस्त का सैट था उसमें तो वो सारी स्टूडेंट्स का फिर टेस्ट इवेंचुअली रीजन प्लाजा का कैंसिल हो गया था, और फिर वो लेटर डेट पे कंडक्ट किया गया था। एब्सोल्युटली right. Ajaji, what is the module format? So effective March 2023, the time is now 2 hours and 14 minutes. The score range, so it's a shorter test. पहले 3 से 4 घंटे का टेस्ट हुआ करता था। इनफैक्ट जब जो अब लेटेस्ट प्रीवियस वर्जन था पेपर बेस्ड, उससे जो पिछला था वो 2400 मार्क्स का था, वो 4 घंटे से ऊपर जाता था करने में। काफी लंबा एंड्योरेंस और स्टैमिना टेस्ट हो जाता था, मैराथन टाइप टेस्ट हो जाता था, जो कि अब नहीं रहा। अब 2 hours and 14 minutes का टेस्ट है जी, विच इज मच शॉर्टर, सो यू विल बी इन एंड आउट इन अबाउट a total of 3 hours inshallah. Scoring range is from 400 to 1600 points. Minimum score 400 आता है जी। So अगर कोई कहे जी मेरा सैट पे 300 आया है तो ऑब्वियसली उसको नहीं पता कि वो क्या कह रहा है, बिकॉज कम से कम स्कोर 400 आता है, मैक्सिमम स्कोर 1600 आता है जी। 4 मॉड्यूल हैं, 2 मैथ के हैं, 2 वर्बल के हैं। और आप देख सकते हैं कि मैथ के अंदर आपके पास जो स्कोर आएगा बिटवीन 200 to 800 पॉइंट्स आएगा, और वर्बल में भी बिटवीन 200 and 800 पॉइंट्स आएगा। और जो टोटल टाइम आपके पास मौजूद होगा मैथ सेक्शंस के लिए वो 70 मिनट्स होगा, डिवाइड इक्वली इंटू 35 मिनट्स ईच। एंड इंग्लिश 32 मिनट्स ईच के 2 सेक्शंस होंगे, टोटल क्वेश्चन 54 होंगे। इरफान जी, एनीथिंग टू ऐड हियर? यहाँ पे स्टूडेंट्स पूछते हैं कि ये जो मिनिमम स्कोर 400 है, ये क्यों है? आप इस पे कुछ लाइट शेड करना चाहेंगे? इसकी वजह ये है कि वो उनको नहीं अच्छा लगता कि आपका जीरो आए किसी का, तो वो जीरो नहीं दिखाते, तो 400 से शुरू कर देते हैं। बाकी और उसमें कोई खास बात नहीं है। इनफैक्ट ये कॉमन थीम है, जी मैट का जो स्कोर है वो भी 200 से 800 के दरमियान आता है। जी मैट जो कि मच टफर टेस्ट है सैट से कंपैरेटिवली, उसका स्कोर भी 200 से 800 के दरमियान आता है। जी आर ई खैर अब तो स्कोरिंग फॉर्मेट चेंज हो गया, 130 to 170 हो गया फॉर ईच सेक्शन, बट पहले जी आर ई में भी यही था कि जी उसके भी 2 सेक्शन होते थे, इनफैक्ट 3 सेक्शन होते थे, फिर 2 हुए, एटसेट्रा एटसेट्रा। उसकी भी लंबी हिस्ट्री है, वो भी 200 से 800 ही आता था। तो ये 200 से 800 की रेंज जो है ये अमेरिकन टेस्टिंग पार्लेंस के अंदर काफी पॉपुलर रही है। अब जीआरई ने चेंज कर लिया अपने आप को, बट जीमैट और सैट अभी भी 200 से 800 के दरमियान एब्सोल्युटली, ही। वो आपको जीरो नहीं देना चाहते। मैं स्टूडेंट्स को यही बताता हूँ कि जी आप अपना नाम लिख के आ जाएं पेपर पे, आपको 400 नंबर तो वैसे ही मिल जाएंगे। हाँ, बट वो किसी काम का नहीं होगा, सो आप ऐसी एडवाइस मत करो। ठीक है जी, नाम लिखने की आप कहेंगे पूरा करके आए जी। अच्छा जी, ये तो मॉड्यूल्स हो गए। आगे बढ़ते हैं जी। नंबर ऑफ क्वेश्चंस का ऐसा ऐसा हम जिक्र कर चुके थे आपसे कि कितने सेक्शंस हैं और कितने टेस्ट हैं, कितने क्वेश्चंस हैं। टाइम पर क्वेश्चन 71 सेकेंड्स टू बी एग्जैक्ट, तकरीबन 1 मिनट और 10 सेकेंड या 11 सेकेंड समझ लीजिए जी, फॉर ईच ऑफ द वर्बल क्वेश्चंस जिसको आप रीडिंग एंड राइटिंग कहते हैं। और फिर 10 मिनट का ब्रेक, और फिर 95 seconds for each of the math questions. यहाँ पे एक क्वेश्चन आया जी अलीजा फराज का, to students applying for medical universities abroad need to take the SAT exam. अलीजा बेटा, ये इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। अमेरिका में अगर आप मेडिकल मेडिसिन पढ़ना चाहती हैं तो उसके लिए आपके पास अंडरग्रेड पहले से होना चाहिए, आपको एम कैट्स देने होंगे अगर आप अमेरिका में पढ़ना चाहती हैं। ठीक है बेटा? अच्छा जी, बिकॉज अमेरिका में पहले आप अंडरग्रेड करते हैं जिस फील्ड में आप चाहें, फिर आप मेडिकल की एजुकेशन की तरफ आते हैं, अनलाइक पाकिस्तान जहाँ पे आप या इंटरमीडिएट के फौरन बाद एमबीबीएस करने चले जाते हैं जी। ओके जी, ये आपके मॉड्यूल का फॉर्मेट हो गया, सो यू नो हाउ मेनी मिनट्स यू हैव फॉर अप्रॉक्सीमेटली फॉर ईच क्वेश्चन ऑफ ईच क्वेश्चन टाइप।
Okay, reading and writing modules. Irfan, please go ahead. एक छोटी सी चीज़ मैं यहाँ पे ऐड कर दूँ स्टूडेंट्स के लिए, बहुत ज़्यादा शायद रेलेवेंट ना हो, बट क्योंकि स्टूडेंट्स ऑनलाइन बहुत रीडिंग कर रहे होते हैं एक्टिवली, तो उन्होंने शायद ये देखा हो कि ये जो सैट है इसमें कुछ क्वेश्चंस ऐसे भी आते हैं जिन्हें वो अनस्कोर्ड या एक्सपेरिमेंटल क्वेश्चंस कहते हैं। अगर आप पिछली स्क्रीन स्टूडेंट्स को दिखा दें तो इसमें जो मैथ के क्वेश्चंस हैं 22 यानी कि 44 क्वेश्चंस टोटल हैं, दोनों सेक्शंस दोनों मॉड्यूल्स मिलाकर। तो उन 44 क्वेश्चंस में से 4 क्वेश्चंस ऐसे हैं जो अनस्कोर्ड या एक्सपेरिमेंटल हैं। काफ़ी स्टूडेंट्स का कंसर्न ये होता है कि भाई ये कौन से क्वेश्चंस हैं और क्या हमें इन्हें अटेम्प्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। सो इसका शॉर्ट आंसर ये है कि भाई चूंकि कॉलेज बोर्ड वाले आपको बताते नहीं है कि कौन से वाले क्वेश्चंस ऐसे हैं जो अनस्कोर्ड हैं या एक्सपेरिमेंटल हैं, तो आपको पता ही नहीं है कि जी इन 44 में से कौन से 4 क्वेश्चंस अनस्कोर्ड हैं। तो आपको तो सारे ही क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं, बिकॉज उनमें से कोई भी 4 अनस्कोर्ड हो सकते हैं। सो बॉटम लाइन ये है कि आपने सारे क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं और आपकी ऑप्टिमल परफॉर्मेंस की बेसिस पे अटेम्प्ट करने हैं। ये एक्सपेरिमेंटल क्वेश्चंस क्यों आते हैं, ये बेसिकली जो कॉलेज बोर्ड वाले हैं ये थोड़ा आपके ऊपर एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, वो क्वेश्चंस को टेस्ट कर रहे हैं और वो अपना फ्यूचर एसएटीज के लिए क्वेश्चंस का डेटा बैंक बना रहे हैं। तो वो आपके ऊपर एक्सपेरिमेंटेशन हो रही है बहुत छोटी सी। वो 4 क्वेश्चंस आते हैं मैथ में और 4 क्वेश्चंस आते हैं वर्बल में जो एक्सपेरिमेंटल होते हैं। ग्रेट। इसीलिए मैं तो बताता नहीं, एक्सपेरिमेंटल क्वेश्चंस आते हैं, मैं कहता हूँ जी सारे क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है, चाहे एक्सपेरिमेंटल हो चाहे नॉन एक्सपेरिमेंटल हो, आपने करना है। ये एक अगेन कॉमन थीम है, जी मैट में भी, एलसैट में भी, सैट में भी, हर जगह, जीआरई में भी हर जगह एक्सपेरिमेंटल क्वेश्चंस आते हैं। बट यू रियली नीड टू ट्रीट द क्वेश्चंस एज इफ दे आर स्कोर्ड, ट्रीट एवरी क्वेश्चन एज इफ इट्स स्कोर्ड क्वेश्चन, ठीक है जी? एब्सोल्युटली, Because you एब्सोल्युटली। will never know which one was an experimental one. अच्छा जी, reading and writing modules. Okay, so basically reading and writing modules के अंदर this is the verbal section or the English section essentially. Okay, और आपके पास जो है वो each section में 27 questions हैं जी मौजूद, as we mentioned previously 27 questions in each module. एंड पहले ये था कि रीडिंग के अंदर एक लंबा पैसेज होता था, इस तरह से 5 लंबे पैसेजेस होते थे जिसमें आपके पास हर पैसेज पे 10 से 12 सवाल होते थे। अब ऐसा नहीं है, अब आपको लंबे पैसेजेस नहीं पढ़ने, विच इज़ अ ग्रेट ग्रेट रिलीफ। मतलब मैं कह सकता हूँ कि जी दिस इज द प्रॉब्ली द बेस्ट न्यूज़ दैट एनीबडी कुड हैव गिवन यू रिगार्डिंग द एसएटी वर्बल सेक्शन। और उसमें हर सवाल में एक पैसेज होगा या एक सेंटेंस कंप्लीशन होगा या एक सेंटेंस करेक्शन क्वेश्चन होगा, एटसेट्रा एटसेट्रा। सो you don't have to read long passages anymore, which is brilliant news. जी इरफान। बस मैं उसी चीज़ को हाईलाइट कर रहा था कि भाई हर सवाल के लिए एक सेपरेट पैसेज होगा और बहुत शॉर्ट शॉर्ट सा पैसेज होगा बिटवीन 25 to 150 वर्ड्स। एब्सोल्युटली। सो अगर आपने प्रैक्टिस करनी है तो बड़ा आसान है जी, आके हमारे पास एक डायग्नोस्टिक टेस्ट कर लीजिए, आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि उस वक्त आपकी करंट पोजीशन क्या है। अच्छा जी, इंग्लिश का सिलेबस क्या है जी? ये आपके मेन टॉपिक्स हैं, इंफॉर्मेशन एंड आइडियाज़। ये वो हैं जो कॉलेज बोर्ड लिस्ट करता है जी, इंफॉर्मेशन एंड आइडियाज़, क्राफ्ट एंड स्ट्रक्चर, एक्सप्रेशन ऑफ आइडियाज़, स्टैंडर्ड इंग्लिश कन्वेंशंस। और इसमें आपके पास रीडिंग कॉम्प्रहेंशन की क्वेश्चंस हैं, बट एक सवाल एक पैसेज के साथ लिंक्ड होगा, तो पैसेज बहुत लंबा नहीं होगा, शॉर्ट पैसेज होगा सिंगल पैराग्राफ का। आपने उसको पढ़ा, उसके बेसिस पे आपने क्वेश्चंस आंसर कर दिए। उसी के साथ आपके पास सेंटेंस कंप्लीशंस भी आते हैं, जहाँ आपके पास एक सेंटेंस है और उसमें एक वर्ड मिसिंग है और आपने बताना है कि कौन सा वर्ड फिट होता है, तो वर्ड इन कॉन्टेक्स्ट हो गया, विच मीन्स वोकैबुलरी इज स्टिल इम्पॉर्टेंट। उसके अलावा आपके पास सेंटेंस करेक्शन टाइप क्वेश्चंस भी मौजूद हैं। So these are things, and it's more logic based now rather than what it used to be earlier. So it is more logic based, and it's a lot more fun to do. I believe इन्होंने बहुत अच्छी changes की हैं. In fact, I enjoyed the new SAT more than I enjoyed the old SAT, which I also enjoyed, but I enjoyed the new SAT a lot more. जी इरफान। सो यहाँ पे स्टूडेंट्स देख सकते हैं कि जो फर्स्ट 2 एरियाज हैं वो रीडिंग पोर्शन बनते हैं मिलके, और जो सेकंड 2 एरियाज हैं दैट्स योर राइटिंग पोर्शन। और आप देख सकते हैं कि रफली उनका वेटेज इक्वल है, शायद थोड़ा सा रीडिंग का वेटेज ज़्यादा हो। एब्सोल्युटली। अच्छा जी, अब हम आते हैं मैथ पे। मैथ के जो, इरफान आपको ये जो आपके नोटेशंस हैं डिलीट कर, बट थैंक यू जी। एब्सोल्युटली, मैथ के एब्सोल्युटली। जो मॉड्यूल्स हैं वो, अगेन प्लीज गो अहेड इरफान। मैथ के जो मॉड्यूल्स हैं 2 मॉड्यूल्स हैं और दोनों मॉड्यूल्स में 22 क्वेश्चंस आ रहे हैं।
फॉर ईच क्वेश्चन, जैसे कि आपने बताया, स्लाइटली ओवर 1.5 मिनट मिलता है। तो क्या सवाल इतने लंबे होते हैं कि 1.5 मिनट लगा दिया जाए? तो इसका जवाब ये है कि नहीं, यूजुअली क्वेश्चंस 1 मिनट में रफली 60 to 70 सेकंड्स में हो जाते हैं। और एक चीज़ जो अभी हम आगे डिस्कस करेंगे, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है डिजिटल सैट के हवाले से, वो ये है कि ये एक अडेप्टिव टेस्ट है, विच मीन्स कि जो आपका सेकंड मॉड्यूल है वो पहले मॉड्यूल की परफॉर्मेंस की बेसिस पे अडेप्ट होगा। तो अगर मैं सिर्फ पहले मॉड्यूल पे बात कर लूँ तो वो एक स्टैंडर्ड मॉड्यूल होगा, जिसमें इजी क्वेश्चंस भी होंगे, मीडियम क्वेश्चंस भी होंगे, हार्ड क्वेश्चंस भी होंगे। एंड जैसे कि आप नोटिस कर सकते हैं यहाँ पे, द डिफिकल्टी लेवल विल इंक्रीज विथ ईच क्वेश्चन टाइप। तो एज यू गो फॉरवर्ड डिफिकल्टी लेवल बढ़ता जाएगा। और जो शुरू वाले क्वेश्चंस हैं उसमें ऐसे क्वेश्चंस भी हो सकते हैं जो आप कंफर्टेबली 30 सेकेंड्स के अंदर कर लें। अच्छा, यहाँ पे ईच क्वेश्चन टाइप से क्या मुराद है? मैथ में दो तरह के सवाल आ सकते हैं। सिलेबस तो काफ़ी टॉपिक्स हैं, वो भी हम आगे डिस्कस करेंगे, बट दो तरह के सवाल आ सकते हैं। 75% क्वेश्चंस वो होते हैं जिसे आप नॉर्मल एमसीक्यूज कहते हैं, और उन क्वेश्चंस के 4 ऑप्शंस दिए हुए होते हैं, आपको करेक्ट ऑप्शन मार्क करना होता है। जो बाकी 25% मैथ के क्वेश्चंस हैं उन्हें आप एसपीआर कहते हैं, स्टूडेंट प्रोड्यूस्ड रिस्पॉन्स क्वेश्चंस, एसपीआर। उसे आप ग्रिड इन, पहले वो ग्रिड इन कहते थे क्योंकि वो ग्रिड में आंसर मार्क करना होता था, अब उसे वो एसपीआर कहते हैं। सो एसपीआर की खास बात यह है कि एसपीआर क्वेश्चंस में आंसर ऑप्शंस नहीं दिए हुए होते, बल्कि एक बॉक्स दिया हुआ होगा जिसमें आपको आपका आंसर टाइप करके एंटर करना होता है। सो यू नीड टू मेक श्योर कि भाई आप ऑप्शंस के बगैर भी क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर सकें। सो 44 क्वेश्चंस में से आप अप्रॉक्सीमेटली फिगर आउट कर सकते हैं कि 33 क्वेश्चंस एमसीक्यूज होंगे, 11 क्वेश्चंस एसपीआरस होंगे। और जब एसपीआर के सवाल आना शुरू हो जाएंगे तो एसपीआर के सवाल भी इन ऑर्डर ऑफ डिफिकल्टी होंगे, यानी कि शुरू वाले थोड़े से आसान होंगे और एंड वाले थोड़े से चैलेंजिंग होंगे। और एमसीक्यूज में भी ऐसा ही होगा। एब्सोल्युटली। सो उसका मतलब ये हुआ कि अगर आप ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि सारे क्वेश्चंस मल्टीपल चॉइस होंगे, तो ऐसा नहीं है। द 25% ऑफ द क्वेश्चंस आर नॉन एमसीक्यू क्वेश्चंस, उसमें आपको आंसर खुद प्लग इन करना होगा। दिस इज इम्पोर्टेंट। दिस इज ओनली फॉर द मैथ। ऑब्वियसली वर्बल में सारे क्वेश्चंस जो हैं वो एमसीक्यू बेस्ड होते हैं जी। अच्छा जी, और इसके जो सिलेबस है उसमें आपके पास इट्स प्रीटी अलजेब्रा हैवी। एज आई कीप टेलिंग एवरीबडी, इट्स वेरी अलजेब्रा हैवी। चाहे वो अलजेब्रा हो, चाहे वो एडवांस मैथ हो, इट्स मेनली अलजेब्रा। उसके अलावा प्रॉब्लम सॉल्विंग का सेक्शन है पर छोटा है, और ज्योमेट्री एंड ट्रिग्नोमेट्री भी है और छोटा है। ट्रिग्नोमेट्री बाय द वे इज नॉट एज हार्ड एज यू वुड एक्सपेक्ट। ऐसी ट्रिग्नोमेट्री नहीं आएगी जो आपके ओ लेवल्स के या एड मैथ में आती है, या ए लेवल्स के या इंटरमीडिएट के मैथ में आती है। ऑफ कोर्स नॉट। कोई आपने थ्योरम प्रूव नहीं करना ट्रिग्नोमेट्री का। स्ट्रेट फॉरवर्ड से स्पेशल राइट ट्राइंगल्स आते हैं, सिंपल सी ट्रिग्नोमेट्री आती है जो इतना मुश्किल नहीं है। जो अगर आपने ट्रिग्नोमेट्री पहले नहीं भी पढ़ी तो भी आप कर सकते हैं, but mostly it's a pretty algebra heavy test. As you can see, the topics are right in front of you: linear equations, linear inequalities, the graphs of linear inequalities, absolute values, quadratics, exponentials, polynomials, rationals, radicals, other logic equations, and problem solving and data analysis is ratio to proportions, percentages, data analysis, probability and statistics. Again, probability, something that a lot of people are afraid of. As soon as they hear the word probability, they want to run. It's not like that. It's actually quite straightforward, the probability that you see in the SAT. So again, a pretty easy thing to work on. That's what you need to be working on. ठीक है जी। अच्छा जी, यहाँ पे सवाल एक आया है स्टूडेंट का, और वो सवाल ये है कि इज सैट टू नेसेसरी टू अप्लाई फॉर इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटीज? आई एम इन माई इंटरमीडिएट। सो सैट टू का एग्ज़ाम अब है ही नहीं, तो आप दे ही नहीं सकते। सो सैट टू जो है वो ख़त्म हो चुका है जी, कोविड के टाइम पे ख़त्म हुआ था आसपास। तो अब देर इज़ नो मोर सैट टू। सो आप जो भी देंगे वो सैट वन का एग्ज़ाम होगा। ओके। So there we go. Now, what is tested on the SAT? Well, it focuses on the math that matters the most for college and career readiness and success. Obviously, अब इसमें intermediate या A-level math नहीं आती, और अब आप SAT 2 भी नहीं दे सकते। इसमें MCQs and student produced responses दोनों मौजूद हैं जी। और इसमें reading and writing passages across a range of academic disciplines and text complexities. That's important. Required demonstration of command of evidence, both textual and quantitative. which basically means कि आपके verbal question के अंदर graphs math का element भी आता है।
Okay, so ऐसा है कि वर्बल के साथ में मैथ भी है. Emphasis on high utility words and phrases in context, sentence completions के context में भी आप इसको देख सकते हैं. And focus on revising and editing words, editing writing to improve the effectiveness of expression, achieve specified rhetorical goals, and demonstrate command of core conventions of standard English sentence structure, usage and punctuation. So basically, that's what your sentence correction was all about. ठीक है जी, ये मेन चीज़ें हैं जो आपकी टेस्ट होती हैं. टेस्ट काफ़ी अब स्ट्रीमलाइन हो चुका है कंपेयर टू, वेल हमेशा से स्ट्रीमलाइन ही था, बट आई बिलीव इट इज़ अ लॉट more in line with what is expected now, because SAT का जो मेन कंपटीशन है वो ACT है, और एक ज़माने में ACT जो था वो इतना पॉपुलर नहीं था. रिसेंट ईयर्स में ACT काफ़ी पॉपुलर हो गया है, पाकिस्तानी यूनिवर्सिटीज अब ACT भी एक्सेप्ट कर लेती हैं. तो उस वजह से SAT को रिस्पॉन्ड करना पड़ा इंटरनेशनली, कि वो ACT के जो पॉपुलैरिटी है उसके जस्ट रिस्पॉन्स में अपने आप को वो चेंज करें. इसीलिए उन्होंने इरफान, अपने would आप को you इम्प्रूव add किया something है there? काफ़ी. बेसिकली अगर आप सैट की मार्केटिंग देखें तो सैट कंसिस्टेंटली ये फोकस करता है, जब भी वो अपने आप को अपडेट करता है तो वो कहता है कि जी हमारा जो नया टेस्ट है, जो नया सैट है, दैट इज़ डिज़ाइंड टू मेजर द स्टूडेंट्स कॉलेज रेडीनेस. जी. तो ये काफ़ी स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन करते हैं कि भाई सैट का क्या रेलेवेंस है हमारे यूनिवर्सिटी लाइफ से. तो बेसिकली जब आप यूनिवर्सिटी में जाएंगे तो यू विल बी डूइंग अ लॉट ऑफ रीडिंग, you will understand that text, and then you will contribute in the class based on what you understand from that text. तो उसी चीज़ को replicate करने की कोशिश की जाती है सैट के अंदर कि जी आपकी अंडरस्टैंडिंग एबिलिटी, रीडिंग एबिलिटी, कॉम्प्रहेंशन एबिलिटी, एंड एबिलिटी टू अंडरस्टैंड नंबर्स, इंटरप्रेट नंबर्स एंड एनालाइज दोज नंबर्स, वो कितनी अच्छी है. सो बार बार Absolutely. सैट इस चीज़ को मार्केट करता है कि जी आप, हमारा जो टेस्ट है वो आपकी कॉलेज रेडीनेस को टेस्ट करता है, विच मीन्स दे आर सेइंग कि जी आपका सक्सेस ऑन द सैट इज डायरेक्टली कोरिलेटेड टू योर सक्सेस इन द यूनिवर्सिटी. सो अगर आप सैट पे अच्छा करेंगे इंशाल्लाह, दैट मीन्स यू हैव अ बेटर चांस ऑफ डूइंग वेल एट यूनिवर्सिटी एज वेल. Great, great. Thank you. So now when you're taking the SAT on the app for the actual digital SAT, आपके पास extra चीजें क्या available होंगी? You will have a clock that will allow you to keep track of the time. 2 घंटे वैसे बहुत स्पीड से गुजर जाएंगे, आपको पता भी नहीं चलेगा. सो क्लॉक तो होगी, बट आप बहुत ज़्यादा क्लॉक पे फोकस नहीं कर सकते, आपको अपने काम पे फोकस करना होगा. इट्स गोइंग टू बी अ वेरी क्विक टेस्ट. ठीक है जी. आपको एक अलर्ट भी मिलेगा जब किसी भी सेक्शन में 5 मिनट बाकी होंगे. Annotation, you can highlight any part of a question and leave yourself a note. This is only available in reading and writing, but great, you know. अच्छा, interestingly, जब पेपर बेस्ड था तो आप अंडरलाइन कर सकते थे, पेपर बेस्ड नहीं है तो अब आपके पास ये एनोटेशन की पॉसिबिलिटी अपने ऑनलाइन ऐप में मौजूद है. ठीक है जी. ओके, एक सवाल आया है मुस्तफ़ा खान साहब का. शुड वी राइट द सेम एड्रेस ऑन कॉलेज बोर्ड साइट विच इज़ ऑन आवर पासपोर्ट? पासपोर्ट पे एड्रेस नहीं होता बेटा. सो देयर इज़ नो एड्रेस ऑन द पासपोर्ट, तो आपने जो एड्रेस लिखना है आप लिख लें. दैट्स परफेक्टली फाइन. अच्छा जी, एनोटेशन आपको अलाउड है. उसके अलावा मार्क फॉर रिव्यू, यू कैन फ्लैग द क्वेश्चन सो दैट यू कैन कम बैक टू देम लेटर. परफेक्टली फाइन, विच इज़ अ ग्रेट थिंग. आपने क्वेश्चन स्किप करना है, फ्लैग कर दीजिए, कम बैक टू इट लेटर, विच इज़ समथिंग दैट विल बी वेरी यूजफुल. एंड देन ऑप्शन एलिमिनेटर, हाँ जी, आपको लगता है कि ऑप्शन ए नहीं है, मैं उसको काटना चाहता हूँ, तो आप उसको क्रॉस आउट कर दीजिए. ऑप्शन बी नहीं है, मैं उसको काटना चाहता हूँ, उसको आप क्रॉस आउट कर दीजिए. सो यू हैव द कैपेसिटी टू डू दैट. द सेम थिंग दैट यू कुड डू इन पेपर, you can now do on the app as well. Graphing calculator will be embedded in the digital interface. Those students will still have the option to bring their own calculator. So you can bring your own calculator. So if you are comfortable with your own calculator, obviously you should take it. There's no question about it. But there's also a graphing calculator जो Desmos का है, जिसको आपको also इस्तेमाल करना आना चाहिए, which is something that we use all the time. It's a great app, beautiful app. It'll allow you to make graphs, etc., very quickly, and to use that to solve questions faster. So make sure that you learn how to use Desmos. Absolutely very, very important. A reference sheet with common formulas for each math question, but वो बहुत limited होती है, so it's not a lot. So you Absolutely. need to learn. Yeah, ये जो formula sheet जो ये देते हैं, ये बहुत ही छोटी सी होती है. आपको majority formulas खुद याद करने पड़ेंगे. So ये तो खैर काफी useless सी चीज है. Anything else to add, Irfan? um, हाँ, यहाँ पे स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि जब अपने आप को टाइम
कर रहे होते हैं टेस्ट पे, और ड्यूरिंग द टेस्ट एक टाइम सकर आ जाता है, तो वो उस सवाल में करते करते दे लूज ट्रैक ऑफ टाइम, और इवेंचुअली दे आर अनएबल टू फिनिश द इंटायर सेक्शन। वैसे तो खैर सैट बहुत ज़्यादा टाइम प्रेशर टेस्ट नहीं है, जैसे कि दूसरे टेस्ट होते हैं, फॉर एग्जांपल आईबीए का टेस्ट ज़्यादा टाइम प्रेशर है, बट मतलब मेरी रेगुलर बेसिस पे स्टूडेंट से बात होती है। कल भी एक स्टूडेंट यही कह रहा था कि भाई मैं जो है वो मॉड्यूल 1 में, जो मैथ का मॉड्यूल 1 था, उसमें मैं थर्ड लास्ट क्वेश्चन पे अटक गया, और आखिरी के फिर 2 या 3 क्वेश्चंस मैंने छोड़ दिए। तो यू नीड टू मेक श्योर कि भाई आप पूरा सेक्शन अटेम्प्ट करें, एंड इफ़ यू आर रनिंग शॉर्ट ऑन टाइम तो आपके जो क्वेश्चंस रह गए हैं उसके आंसर्स मार्क कर दें, बिकॉज देयर इज नो नेगेटिव मार्किंग। और इसी वजह से वो जो 5 मिनट अलर्ट आपको दिया हुआ है, जो जो इनबिल्ट है सॉफ्टवेयर में, वो जब आपको 5 मिनट का अलर्ट मिल जाएगा, जी 5 मिनट रह गए हैं, तो मेक श्योर कि यू स्टार्ट रैपिंग अप योर मॉड्यूल। बिल्कुल, और मैं आपको 5 मिनट अलर्ट दे सकता हूँ हमारी प्रेजेंटेशन के टाइम का। अच्छा जी, कंप्यूटर अडेप्टिव टेस्टिंग। कंप्यूटर अडेप्टिव टेस्टिंग क्या है जी? सो बेसिकली इट्स सेक्शन अडेप्टिव है। उसका मतलब ये है कि जो आपके पहले मॉड्यूल की परफॉर्मेंस होगी वर्बल की, उसके बेसिस पे आपका सेकंड मॉड्यूल जो है उसकी डिफिकल्टी सेट करता है सॉफ्टवेयर। और सेम विद मैथ, पहला मॉड्यूल जो है वो जनरल डिफिकल्टी का होगा और सेकंड मॉड्यूल जो है वो टफर डिफिकल्टी का होगा। Students can question hop or leave a question blank and flag it to return later. ये हम डिस्कस कर चुके हैं कि आप उसको मार्क करना चाहें तो आप छोड़ सकते हैं जी। And the digital SAT suite uses multi-stage adaptive testing, इसका मैं जिक्र कर चुका हूँ जी। And the first module contains a mix of easy, medium, and hard questions. Based on how you perform on the first module, the second module of questions will either be more difficult or less difficult. It hopefully will be more difficult. Hopefully you'll do much better, and it's supposed to get tougher. ठीक है जी। और the difficulty of the second module is not calculated until the first module is submitted as complete. तो आपका पहला मॉड्यूल complete होगा, तो ऑटोमेटिकली उसके बेसिस पे आपका सेकंड मॉड्यूल की डिफिकल्टी लेवल सेट करके सॉफ्टवेयर आपको सेकंड मॉड्यूल थमा देगा कि जी, अब ये करें जी। इसमें क्वेश्चंस यहाँ पे स्टूडेंट्स के आ रहे हैं, जिसमें मेन क्वेश्चन जो है वो लम्स और आईबीए के बारे में आ रहा है, 2-3 दफा आ चुका है। वो ये है कि will IBA and LUMS increase their SAT criteria as little SAT is comparatively easier than previous method? Great question. हमने इसके ऊपर एक पूरा एनालिसिस किया है पिछले 6 साल का डेटा निकाल के कि सैट और आईबीए के टेस्ट में जो एडमिशन्स में जो डिफरेंस है वो क्या है। और मैं उसके ऊपर होपफुली मे बी नेक्स्ट वीक एक सेशन करना चाहूंगा, या मे बी व्हाट विल डू इज विल मेक अ वीडियो ऑफ इट, बट लेट्स सी। तो हम सून आपको उस पर डिस्कस करेंगे। बट ये क्वेश्चन तो सिर्फ आईबी आंसर कर सकता है ना कि वो क्राइटेरिया बढ़ाएंगे कि नहीं बढ़ाएंगे। और मिनिमम क्राइटेरिया तो आपको मालूम है कि आईबीए का जो है वो 1270 है फॉर देयर देयर बिग प्रोग्राम्स एंड 1200 फॉर द अदर प्रोग्राम्स। लम्स कोई मिनिमम क्राइटेरिया तो बताता नहीं है। बट जो इंटरव्यू के बगैर एडमिशन लेना है आपने आईबीए में, तो उसका जो लास्ट टाइम कट ऑफ आया था वो 1450 आया था। सो एज यू कैन सी काफी हाई स्कोर कट ऑफ था। तो जवाब तो ऑटोमेटिकली आ ही रहा है कि कट ऑफ काफी हाई जा चुके हैं जो बगैर इंटरव्यू के एडमिशन वाले। बट ये एक बड़ी इंटरेस्टिंग एनालिसिस है जो मैंने और इरफान ने मिलकर की है, तो मैं आपके साथ शेयर जरूर करूंगा इंशाल्लाह। और हमने प्रोग्राम हर प्रोग्राम के हिसाब से की आईबीए के लिए, सो वील कम टू दैट बट नॉट टुडे, इंशाल्लाह सून। अच्छा जी। There are two potentially difficulty levels for the second module in both reading and writing and math. One with an average difficulty easier than the first module, and the other with an average difficulty harder than the first module. ताकि पहले वाले की performance पे second module आपको आ जाएगा, या तो comparatively easy आएगा या comparatively hard आएगा. So this is what it is. Module 1 leading to module 2, leading to your final score in that particular section, चाहे verbal हो चाहे math हो। यहाँ ठीक पे है बस जी। मैं दो जी कुछ चीज़ें ऐड कर दूं स्टूडेंट्स के लिए, कि भाई जब आप पहला मॉड्यूल अटेम्प्ट करेंगे तो उसमें इजी मीडियम हार्ड सारे क्वेश्चंस होंगे। इफ़ यू डू वेल ऑन द फर्स्ट मॉड्यूल, योर सेकंड मॉड्यूल इज गोइंग टू बी कंपैरेटिवली टफर। दैट्स नॉट बैड न्यूज़ फॉर यू, दैट्स गुड न्यूज़ फॉर यू। अगर सेकंड सेक्शन टफर आया है, इसका मतलब आपने पहले सेक्शन पे अच्छा परफॉर्म किया है। सो सेकंड सेक्शन के क्वेश्चंस जनरली पहले सेक्शन के मुकाबले में कंपैरेटिवली टफर होंगे, बिकॉज आपने पहले सेक्शन पे ज़्यादा क्वेश्चन सही किए होंगे। दूसरी बात जो समझना ज़रूरी है वो ये है कि द फर्स्ट सेक्शन विल सेट योर टोन
for the second section and your final score. So पहले सेक्शन पे क्वेश्चन सही करना एक्चुअली ज़्यादा ज़रूरी है अगर कंपैरिजन किया जाए। उसकी वजह यह है कि पहले पहले मॉड्यूल में या पहले सेक्शन में जो कंप्यूटर का एल्गोरिथम है, दैट इज ट्राइंग टू फिगर आउट कि स्टूडेंट का ब्रॉड रेंज क्या है ऑफ स्कोर्स। तो अगर आप पहले सेक्शन पे अच्छा कर लेते हैं, द एल्गोरिथम डिसाइड्स कि भाई ही इज डन वेल, ही इज डन मोस्ट ऑफ हिज क्वेश्चंस करेक्टली, तो इट फिगर्स आउट कि भाई तुम्हारा मैथ का या वर्बल का लेवल अच्छा है, एंड इट गिव्स यू अ चैलेंजिंग सेकंड सेक्शन। सो द कंप्यूटर हैज ऑलरेडी डिसाइडेड अप टू अ सर्टन रेंज के भाई तुम्हारा सेक्शन अच्छा गया है और तुम्हारा रिलेटिवली हायर स्कोर आना चाहिए। So the first module is actually slightly more important than the second module. एब्सोल्युटली, बिल्कुल आपने ठीक कहा जी। अच्छा जी, स्कोरिंग ये एक स्टैंडर्ड तरीका है जी जिस तरह से वो बनाते हैं। इन्होंने जिक्र किया था कि जी आपने मॉड्यूल 1 किया और मॉड्यूल 1 करने के बाद आपके पास मॉड्यूल 2 के दो ऑप्शंस हैं, मॉड्यूल 2A आएगा या 2B आएगा। ये आप फैसला नहीं करेंगे, ये सॉफ्टवेयर बताएगा कि जी आपने कौन सा मॉड्यूल करना है, और आपको बताएगा नहीं वो 2A है कि 2B है। यानी आपको ये नहीं पता होगा कि आपने परफॉर्मेंस पहले वाले में अच्छी की कि बुरी की, आपके सामने बस एक दूसरा मॉड्यूल आ जाएगा। और आपने ये इतना सोचना भी नहीं है कि जो मैं मॉड्यूल कर रहा हूँ ये मॉड्यूल कंपैरेटिवली आसान है, कंपैरेटिवली टफ है। डोंट थिंक अबाउट इट, बिकॉज मैंने कई दफा देखा है स्टूडेंट्स बाद में आ कहते हैं सर वो मेरा सेक्शन जो 2 था ना वो सर काफी आसान लग रहा था, तो उसका मतलब ये कि मेरा स्कोर अच्छा नहीं आएगा ना। और पता चलता है कि स्कोर बहुत अच्छा आ जाता है, बिकॉज उसकी वजह ये है कि आपको लग रहा होता है कुछ, बिकॉज हो सकता है आपका माइंड जोन में आ चुका है और आप जबरदस्त परफॉर्मेंस दे रहे हैं, तो आपको बहुत आसान लग रहा है। सो डोंट थिंक अबाउट दीज थिंग्स। ये कंप्यूटर अडेप्टिव टेस्ट में आप सेकंड गेस करने मत बैठ जाएं सॉफ्टवेयर को। आपके पास सवाल करने के लिए ज्यादा टाइम है नहीं। अगर आप इन Absolutely. चीजों के बारे में सोचना शुरू हो जाएंगे टेस्ट के दौरान तो आप तो गए काम से। अच्छा जा रहा होगा वो खराब हो जाएगा। सो प्लीज डोंट थिंक लाइक दैट। सो ये सब चीजें जो है ना पता होना जरूरी, but it has no impact on how you should be doing your how you should be performing in the actual test. It should be कि जी I'm going to give the best test of my life on this particular day. That should be your focus. ठीक है जी। उसमें जो आपके पास strategies मौजूद हैं उनका यूज करें, but obviously आप ये सब चीजों के बारे में इतना सोचना आपने बिल्कुल नहीं है। तो इसलिए Absolutely. इरफान डिस्ट्रैक्ट ना हो जाए, डिस्ट्रैक्ट ना हो जाए। मैं और चाहूंगा कि बस इतना काफी है कि लोग ये सोच लेंगे जी हमने अच्छा परफॉर्मेंस करना है। कंप्यूटर अडेप्टिव के बारे में उन्होंने बता दिया जी, वेरी गुड, बट इट डजंट रियली मैटर। फोकस ऑन एब्सोल्युटली, द बेस्ट टेस्ट ऑफ योर लाइफ इन दैट जिस वक्त पर्टिकुलर। आप टेस्ट दे रहे हैं उस वक्त की फोकस ऑन गेटिंग का क्वेश्चंस करेक्ट, टाइम फ्रेम जहन में रखें और मैक्सिमम क्वेश्चन सही करें। दैट्स द सिंपल ऑब्जेक्टिव। राइट, अब हम सवाल आता है कि जी व्हाट इज द स्कोरिंग, और स्कोरिंग के अंदर व्हाट्स अ गुड स्कोर। एवरेज स्कोर जो है वो 1000 पॉइंट्स के आसपास है अकॉर्डिंग टू कॉलेज बोर्ड डेटा। इट्स बेस्ड ऑन परसेंटाइल्स। परसेंटाइल टेल्स यू के वेयर यू स्टैंड। तो अगर आप 99th परसेंटाइल में हैं तो उसका मतलब ये है कि आप बेस्ट हैं, आप टॉप 1% में हैं। अगर आप 90th परसेंटाइल में हैं तो उसका मतलब ये है कि आप टॉप 10% में हैं। अगर आप 75th परसेंटाइल में हैं तो उसका मतलब ये है कि आप टॉप 25% में हैं। तो जिस परसेंटाइल में है उसको 100 से माइनस कर दीजिए तो पता चल जाएगा कि आप कौन से परसेंट, टॉप कौन से परसेंट में। राइट, तो अगर खुदा ना खास्ता आप 25th परसेंटाइल में है तो उसका मतलब ये है कि आप top 75% में, which is not something to be very happy about. So this is what it looks like. So if you want to be in the top 99th percentile, you need to be scoring somewhere around 1520 or above. Obviously, it does vary from test to test, but this is the average. So योर टास्क शुड बी कि जी मैं मैथ में भी 800 ले आऊं और मैं अंग्रेजी में भी 800 ले आऊं। राइट, बिल्कुल पॉसिबल है। कई दफ़ा लोग लेके आते हैं और इसके लिए मेहनत करना ज़रूरी है, बट यू कैन डू इट। There have been plenty of students who've done it. Okay जी। So these are what the scores look like. इरफान, जो एक सवाल बहुत कॉमनली मुझे बार बार आ रहा है फेसबुक पे, वो ये आ रहा है कि हम प्रेपरेशन कैसे करें। सो आई एम गोना ट्राई एंड मूव ऑन टू दैट क्विकली। हाउ मच इज ऑलराइट। ईच क्वेश्चन वर्थ? वेल, ईच क्वेश्चन इज 1 पॉइंट फॉर ईच करेक्ट आंसर। उससे आपका एक रॉ स्कोर डिटर्मिन होता है। देयर इज नो नेगेटिव मार्किंग। सो अगर आपने कोई सवाल गलत कर लिया है तो घबराने की बात नहीं है जी, उससे आपके मार्क्स नीचे नहीं होंगे। तो इसलिए आपने कोई क्वेश्चन स्किप नहीं करना और आपने उसको मार्क करना है। ठीक है जी, ये बात पहले भी हम जिक्र कर चुके हैं। एंड ऑल द क्वेश्चंस हैव द सेम नंबर ऑफ पॉइंट्स। तो इजी क्वेश्चंस हो चाहे हार्ड क्वेश्चंस हो, सबके पॉइंट्स बराबर हैं। उन सबको ऐड करके एक रॉ स्कोर बनाया जाता है और रॉ स्कोर बनाने के बाद उसको कन्वर्ट किया जाता है। मैं आपको दिखाता हूँ कन्वर्जन किस तरह से होती है जी। तो ये एक कन्वर्जन है जी। फॉर एग्जांपल लेट्स से कि आपने टोटल अंग्रेजी के अंदर 36 क्वेश्चंस ठीक किए, तो आप देख सकते हैं कि जी 36 के आगे जो रीडिंग एंड राइटिंग का स्कोर लिखा हुआ है वो 520 लिखा हुआ है, तो 520 आ जाएगा।
अगर आपने मैथ में भी 36 क्वेश्चंस ठीक किए तो उसमें आप देख सकते हैं वहाँ 550 आ जाएगा। मैथ में ऑब्वियसली क्वेश्चंस कम हैं, तो with a 54, with if you get all the questions right, which are 54, you'll get a perfect 800 score in math. But 54 questions right in English will mean only a 650. So this is an approximate conversion. मैं आपको approximate का word इसलिए यूज कर रहा हूँ because ये हर टेस्ट के साथ चेंज होता है। मतलब आप समझ लें 10-20 पॉइंट ऊपर नीचे हो सकता है। दिस इज बेस्ड ऑन द डिफिकल्टी लेवल ऑफ ईच टेस्ट। और ये स्कोर कन्वर्जन हमने नहीं बनाया, ये कॉलेज बोर्ड पे मौजूद है। हमने वहां से सिंपली डाउनलोड करके यहाँ पे प्रेजेंटेशन पे ले आए हैं। ठीक है जी। यहाँ पे कुछ ऐड करना चाहेंगे इरफान आप? बस इतनी सी बात है कि ये जो स्कोर कन्वर्जन है ये कोई फिक्स नहीं है, ये टेस्ट टू टेस्ट वेरी करती है बेस्ड ऑन परसेंटाइल्स। सो ये आपको ब्रॉड कन्वर्जन में समझा दी गई है। और Yeah. बॉटम लाइन ये है कि जब आप क्वेश्चन सही करेंगे, अगर मैथ के टोटल क्वेश्चंस में से आप लेट्स सपोज 40 क्वेश्चन सही कर लेते हैं तो आपका रॉ स्कोर 40 आएगा। और जब उन 40 क्वेश्चंस को और उस 40 रॉ स्कोर को आप टेबल पे देखेंगे कि जी कितना स्केल्ड स्कोर बन रहा है, तो वो कन्वर्ट करके आपका स्केल्ड स्कोर आ जाएगा आउट ऑफ 800। तो उस कैलकुलेशन में या उस कन्वर्जन पे आपको ज़्यादा कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। आपका ऑब्जेक्टिव सिंपल है कि आपने मैक्सिमम क्वेश्चन सही करने हैं, और वो दैट विल रिजल्ट इन अ हायर रॉ स्कोर एंड ऑटोमेटिकली इन अ हायर स्केल्ड स्कोर। वेरी गुड। ओके जी, एक्सीलेंट। अच्छा जी, हाउ टू प्रिपेयर? कम टू अनीस हुसैन, सिंपल इज दैट, राइट? अनीस हुसैन, आपको क्यों आना चाहिए सैट के लिए? क्योंकि हम एक बहुत ही कॉम्प्रहेंसिव सैट का कोर्स कराते हैं, जिसमें तमाम टॉपिक्स हम आपको प्रिपरेशन कराते हैं। बाय द वे, अनीस हुसैन शायद वो वाहिद अदारा है पाकिस्तान में जो कि इतने अरसे से सैट, जी मैट, जी आर ई सब की तैयारी करा रहा है। मैंने पर्सनली जी मैट, जी आर ई, सैट कंसिस्टेंटली पढ़ाता हूँ। और इस वक्त मैं पाकिस्तान में मौजूद नहीं हूँ, बट मैं फिर भी कंसिस्टेंटली सैट, जी मैट, जी, इनफैक्ट अब तो मैं यहाँ कनाडा में लोगों को जी मैट, जी आर की तैयारी करवा रहा हूँ। तो आप देख सकते हैं कि हमारे पास जो एक्सपीरियंस है टीचर्स का वो सबसे ज़्यादा है। सो वी विल मेक श्योर दैट वी टीच यू द थ्योरी एंड मेक यू डू अ लॉट ऑफ प्रैक्टिस। माई स्ट्रॉन्ग बिलीफ है इसके जी, थ्योरी तो ठीक है बट प्रैक्टिस नहीं किया तो कोई फ़ायदा नहीं। एग्जाम में आपको प्रैक्टिस के बगैर जाएंगे तो अच्छी परफॉर्मेंस नहीं आएगी। सो वी डू अ लॉट ऑफ प्रैक्टिस, ठीक है जी। अच्छा, उसके अलावा हम काफ़ी घंटे आपको ऑफर करते हैं, सबसे ज़्यादा घंटे हम ही ऑफर करते हैं। दिस इज़ अ फैक्ट। बाकी लोग बातें करते हैं, हम आपको एक्चुअली आवर्स देते हैं। 10 आवर्स पर वीक फॉर 12 वीक्स, दिस इज़ अ स्टैंडर्ड कोर्स। इसमें अगर आपको रिक्वायरमेंट है एक्स्ट्रा आवर्स की तो वो भी आपको मिल जाती है। हमारे पास तमाम लेक्चर्स क्लास के जो आप लेते हैं वो रिकॉर्ड होते हैं, और आपको स्टूडेंट पोर्टल का एक्सेस दिया जाता है, और वो क्लास की रिकॉर्डिंग क्लास खत्म होने के बाद पोर्टल पे अपलोड कर दी जाती है। तो अगर खुदा न खास्ता आप कोई क्लास मिस करते हैं तो आपके पास उसकी रिकॉर्डिंग मौजूद है। अगर आपने क्लास देख ली बट आप बाद में उसको फिर रिव्यू करना चाहते हैं, आपके पास रिकॉर्डिंग मौजूद है, आप उसको रिव्यू कर सकते हैं। दिस इज़ वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स दैट वी फील आर बेनिफिशियल फॉर आवर स्टूडेंट्स। एंड हम फुल लेंथ टेस्ट की प्रैक्टिस भी कराते हैं, तकरीबन 8 से 10 फुल लेंथ टेस्ट की प्रैक्टिस करवाते हैं ताकि आप लोग अपने आप को कॉम्प्रहेंसिवली प्रिपेयर्ड फील करें। तो ये अनीस हुसैन का सैट कोर्स है। 12 हफ्ते, 3 मंथ्स का स्टैंडर्ड टाइम है जो हम लेते हैं आपको तैयारी कराने के लिए। तो दिस इज व्हाट वी ऑफर यू। जी इरफान, आप कुछ बताना चाहेंगे इनको? बिल्कुल, जब से हमने ये पोर्टल इम्प्लीमेंट किया है और क्लास रिकॉर्डिंग्स का स्टूडेंट्स को एक्सेस देना शुरू किया है, तो इसका भी स्टूडेंट्स की तरफ से बहुत पॉजिटिव फीडबैक आया है। बहुत सारे स्टूडेंट्स जो रेगुलरली क्लासेस लेते हैं, दे दे गो बैक एंड समटाइम्स रिव्यू देयर लेक्चर्स। जो लास्ट मंथ होता है प्रिपरेशन का, जब टेस्ट करीब आ रहा होता है एंड दे वांट टू रिवाइज सर्टन एरियाज, तो वो रिकॉर्डिंग्स उनके पास मौजूद होती हैं, महीने पुरानी, 2 महीने पुरानी, और वो उसमें से निकाल के अपने वीक एरियाज को एक दफ़ा रिव्यू कर लेते हैं। जी, और मैंने वो जिक्र किया कि मैं 1995 से सैट पढ़ा रहा हूँ, जिस ज़माने में सैट का पिछला जो अब वर्जन है उससे 3 पुराना वर्जन था, 3 वर्जन्स ओल्डर। सो मैंने सारे वर्जन्स देखे हुए हैं जी। आई कैन टेल यू कौन से वर्जन में क्या अच्छा था, एट्सेट्रा एट्सेट्रा। वो आपको चीज़ें हैं जो आजकल जो ऑब्वियसली देयर आर मेनी अदर इंस्टीट्यूट्स एज वेल जो ऑफर कर रहे होते हैं, बट वी कैन ऑफर यू समथिंग दैट दे cannot offer. Launched our first SAT course in 1989. This is the time when Anis Hussain himself started his first SAT course. As I mentioned to you, the most experienced SAT teachers in Pakistan. Obviously, Alhamdulillah, we can prepare on campus or online. अगर आप कराची में नहीं हैं
या आप कराची में हैं बट आप कैंपस नहीं आना चाहते, ऑनलाइन करना चाहते हैं, वी हैव दैट ऑप्शन अवेलेबल। हमारे सारे कोर्सेज में ऑनलाइन स्टूडेंट्स भी मौजूद होते हैं और ऑन कैंपस स्टूडेंट्स भी मौजूद होते हैं। इनफैक्ट हमारा अब ऑनलाइन काफ़ी पॉपुलर हो गया है, काफ़ी रेगुलरली स्टूडेंट्स उसमें आ रहे होते हैं जी। एंड एज आई मेंशन टू यू अर्लियर, वी हैव डेडिकेटेड टीचर्स जिनकी एक्सपीरियंस बहुत ज़्यादा है, जो कि ना सिर्फ सैट की तैयारी कराते हैं रेगुलर बेसिस पे। हमारे सैट के टीचर्स वो हैं जो जो जी मैट जी आर ई पे भी ट्रेंड हैं। Or GMAT GRE is a much tougher version of the SAT exam, so you can imagine the kind of teachers that you are getting. We are probably the only institute, at least in Karachi right now, जो GMAT GRE का रेगुलर कोर्स ऑफर करता है और सैट भी ऑफर करता है जी। ठीक है जी। अच्छा जी, यहाँ पे एक और सवाल पूछा है लोगों ने कि what is the advantage of giving SAT 1 to apply for engineering universities abroad? Will they give scholarship on the basis of good score? Absolutely. Very, very important. SAT score अच्छा होगा तो आपके पास एडमिशन के चांसेस भी बढ़ जाते हैं और आपके पास जो है वो स्कॉलरशिप के चांसेस भी बढ़ जाते हैं। ठीक है जी। मोहम्मद साहब पूछ रहे हैं, डज एडमिटन्स टू यूनिवर्सिटीज नीड मोर देन जस्ट अ ग्रेट सैट स्कोर? यस, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिपेंड करता है कि कहाँ अप्लाई कर रहे हैं, बट जी। यस। यस। बिल्कुल, अब जैसे आप आईबीए में अप्लाई कर रहे हैं तो आईबीए तो सिर्फ सैट स्कोर देखता है और आपकी मिनिमम स्कोर रिक्वायरमेंट्स देखता है और एडमिशन दे देता है। लम्स का क्राइटेरिया जो है वो डिफरेंट है। लम्स इसीलिए कहता है कि जी देयर इज नो मिनिमम सैट स्कोर, आप स्कोर सबमिट करें और अपने बाकी डिटेल सबमिट करें और फिर हम फैसला करेंगे कि आपकी जो हमारे क्राइटेरिया है उस पर आप कहाँ लैंड करते हैं। लम्स बाय द वे, I've asked them plenty of times, do you have some kind of a formula? They say, yes, we do, but obviously we cannot tell you what the formula is. But I suspect the most amount of importance that LUMS gives to the application is the SAT score and your O levels grades, ठीक है जी, या your metric grades. Okay. एब्सोल्युटली। Right. Acha, any student who needs extra help in the SAT can also ask us and we provide the extra classes as well. जहाँ के आपको कहीं मसला हो तो आप हमसे extra time ले सकें। बहुत commonly लोग कह रहे होते हैं जी वो आपको extra help मिल जाती है, which is available. So कोई recorded हमने आपको lecture नहीं दे दे कि कहते हैं कि जी ये recorded lecture जाके videos देख लें आप, तो काम हो जाएगा। नहीं, आप आएँ, proper classes लें, जहाँ help चाहिए आपको आपके पास teachers मौजूद हैं, आपको help out कर रहे हैं, extra time भी दे रहे हैं। Yeah, I believe is a proper way of teaching the particular SAT course. Acha ji, and you also have the opportunity to resit for the classes if you wish to take the exam later. So let's say कि आपने preparation की है नवंबर के लिए, पर आप कह रहे नहीं सर मैं दिसंबर में वापस टेस्ट देना चाहता हूँ, कैन आई ज्वाइन अगैन? एब्सोल्युटली, हम आपको अलाउ करेंगे, आप आके बैठें और अपनी क्लासेस रीसेट करें। यू विल बी अलाउड टू डू दैट। ठीक है जी। अच्छा, अब यहाँ पे इरफान सवाल आना शुरू हो गए हैं अब दबा के जी। पहला सवाल तो ये कि कैन यू प्लीज शो स्लाइड नंबर 27? ओके। अभी दूसरा सवाल ये है कि इज द सैट एप्लीकेबल फॉर जी आई के इंस्टीट्यूट? इरफान, डू यू रिमेंबर जी आई के का जो लेटेस्ट अपडेट है उसमें सैट अवेलेबल अलाउड है कि नहीं है? आई एम नॉट रियली श्योर, नास्ट में तो सैट एक्सेप्टेबल है, जीआई के का डबल चेक करना पड़ेगा। बट चूंकि मैं आपको चूंकि जो पाकिस्तानी यूनिवर्सिटीज़ हैं वो इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटीज़ फोकस करती हैं आपकी सब्जेक्ट नॉलेज पे, और चूंकि अब सैट टू, जिसे सैट सब्जेक्ट टेस्ट भी कहा जाता था, वो ख़त्म हो गया है, तो देयर अ जी हाँ, स्ट्रॉन्ग चांस कि वो चाहेंगे कि आप उनका अपना वेबसाइट में ये टेस्ट लें। लिखा हुआ है कि अगर आप सैट के बेसिस पे कर रहे हैं तो आपको सैट टू देना जरूरी है और सैट टू तो अवेलेबल नहीं है। सो आई डोंट थिंक दे विल बी एबल टू अप्लाई ऑन द बेसिस ऑफ एसएटी 1 अलोन, बिकॉज यहाँ पे सैट टू मेंशन किया हुआ है कि सैट टू इन फिजिक्स एंड मैथ्स फॉर इंजीनियरिंग। सो यू डोंट हैव सैट टू, सो यू कांट गो इट डू इट। अच्छा जी, हाउ मच ऑफ सैट इज अ सेफ जोन फॉर आईवी लीग्स? वाओ हमजा, ग्रेट क्वेश्चन। सो आईवी लीग्स हैं जी 1500 प्लस तो आपको करना है जी। इफ यू गोइंग फॉर आईवी लीग्स, यू वांट टू गेट इनटू द टॉप यूनिवर्सिटीज इन द वर्ल्ड। 1500 प्लस तो कहीं नहीं गया, मतलब आप समझ लीजिए कम से कम 1500, प्रेफरेबली 1550। अच्छा जी, हाउ लॉन्ग इज सैट वैलिड फॉर? वेल, इट्स वैलिड फॉर 5 years। यू कैन यूज योर सैट स्कोर फॉर 5 years। तो आप आज दे दें जी, अगले 5 साल तक उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है जी। Do engineering universities accept digital SAT? Well, depend करता है, so it varies from university to university. For example, FAST में apply कर रहे हैं computer science के लिए, वो accept कर लेंगे, but engineering programs में usually क्योंकि physics भी चाहिए होता है और chemistry भी वो test कर रहे होते हैं, तो there's a very good chance कि वो आपको कहें कि वो आप अपना local test दें। अगर आप universities mention कर देंगे तो आपको बता देंगे जी वहाँ पे acceptable है कि नहीं है।
अच्छा जी, is SAT and IELTS enough to get a scholarship abroad in engineering universities? Well, absolutely. You take your SAT, but IELTS, by the way, is a different test altogether. IELTS is just a language test that tells universities कि आपकी basic language skills हैं कि नहीं है, आप survive कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे in the environment. So, और वो visa applications के लिए भी जरूरी होता है. So, IELTS को SAT से कंपेयर नहीं करना चाहिए. आइल्स को सैट से कंपेयर करना लॉजिकल नहीं है, सो प्लीज डोंट कंपेयर दैट. अच्छा जी, शुड आई गिव अगेन आफ्टर अ 1540? Oh wow, mashallah, Hamza Zaidi, 1540 is a beautiful score. Should you be redoing it after 1540? Well, send me your breakup. You can drop me an email and tell me where you want to apply. I can run it by a few counselors and find out if they feel that this is going to be sufficient or not. But I think it might be. Okay, so बाकी चीजें भी बता दीजिए मुझे, आपकी बाकी क्या पोजीशन है. यहाँ पे मैं याद ऐड करता चलूँ कि हमजा जैदी रखिएगा. हमारे गुलशन कैंपस के स्टूडेंट हैं और माशाल्लाह टॉप परफॉर्मर हैं, 1540 स्कोर किया था इन्होंने। माशाल्लाह, वेल डन, वेल डन. तो कंग्रेचुलेशन इरफान. अच्छा जी, यानी कि देखा जी, ये रियल स्कोर है, ये हम नहीं कह रहे, बच्चा बता रहे हैं. ओके. अच्छा जी, टू गेट इनटू नास्ट आई रेड दैट सैट 2 इज नेसेसरी. जहाँ पे सैट 2 लिखा हुआ आ रहा है बेटा, समझ लें कि वो अब आप सैट के थ्रू अप्लाई नहीं कर सकते. अब या तो वो यूनिवर्सिटी कहेगा नहीं जी हम सैट 1 ले लेंगे प्लस आपका वो लेवल्स का हम सब्जेक्ट देख लेंगे, या वो कहेंगे जी हमारा टेस्ट दें, तो आप समझ जाएंगे जी आपने उनका अपना टेस्ट भी देना चाहिए पड़ेगा आपको. मुस्तफा कह रहे हैं डज नस्ट ऑफर स्कॉलरशिप्स ऑन गुड स्कोर्स? स्कॉलरशिप क्राइटेरिया पाकिस्तान में यूजुअली जो है वो सैट के बेसिस पे नहीं होता. यूजुअली पाकिस्तान की यूनिवर्सिटीज़ जो है उनका स्कॉलरशिप क्राइटेरिया डिफरेंट होता है. इट्स यूजुअली बेस्ड ऑन नीड. जितनी यूनिवर्सिटीज़ हैं पाकिस्तान में मेजॉरिटी केस में यही मसला है कि वो नीड बेस्ड हैं, वो दे आर नॉट बेस्ड ऑन मेरिट. तो इस वजह से अगर आपको स्कॉलरशिप का है तो आपको यूजुअली नीड बेस्ड एप्लीकेशंस फाइल करनी पड़ेंगी, और उसके बेसिस पे वो आपको स्कॉलरशिप्स ऑफर कर सकते हैं. बट अपार्ट फ्रॉम दैट ये नहीं है. अच्छा जी, since you don't offer a course for the LCAT, should we register for your BCAT course or SAT course to prepare for the LCAT? आपसे किसने कहा हम LCAT ऑफर नहीं करते? जी हम LCAT ऑफर करते हैं, बट वो बेसिकली SAT के साथ ही होता है. So you do the SAT course is the same as the LCAT course because LUMS basically tells you that SAT and LCAT is the same. So our LCAT is basically our SAT course, and you can also do it through our IBA course as well. हमारा IBA course भी बहुत comprehensive है, अच्छा खासा comprehensive है. हम 2 बुक्स कराते हैं मैथ की. ओके, 2 बुक्स कराते हैं जी मैथ की. एज यू कैन सी काफी कॉम्प्रिहेंसिव कोर्स है. मैथ इटसेल्फ इज 2 बुक्स एंड लॉट्स ऑफ कॉन्सेप्ट्स. सो सैट भी कवर हो जाता है इसमें, इसमें आपका आईबीए भी कवर हो जाता है, इसमें एलकैट भी कवर हो जाता है. मावी साहब पूछ रहे हैं जी, जीआरई एंड जीमैट आर टफर देन सैट, देयरफॉर डू द वैल्यूज ऑफ द टू डिफर? वेल, जीमैट एंड जीआरई आर नॉट फॉर अंडरग्रेड माय फ्रेंड. So if you're applying for undergrad, you will not be taking GMAT and GRE. You will be taking the SAT or the university's admission test. GMAT and GRE जो है वो मास्टर्स प्रोग्राम्स के लिए अप्लाई होता है. ठीक है बेटा. सो इट्स दैट्स व्हाई इट्स डिफरेंट, इट्स टफर. अच्छा सर जी, हादिया के क्वेश्चन पे मैं ये ऐड करता चलूँ कि जिन स्टूडेंट्स को एलकैट की प्रिपरेशन करनी है, उनके पास अब जो अपॉर्चुनिटी है वो ये है कि वो हमारे पास सैट दिसंबर के कोर्स में ज्वाइन कर सकते हैं, और वो सैट दिसंबर की प्रिपरेशन भी करेंगे, साथ साथ एलकैट की प्रिपरेशन भी करेंगे. दी you एलकैट इज एक्सपेक्टेड ऑन दी mean for 18th next ऑफ year? फरवरी. You mean the next year? Because अब तो दिसंबर कंप्लीट हो गया. सो हम जो अभी बैचेस स्टार्ट कर रहे हैं दिसंबर एंड जनवरी फर्स्ट वीक में अक्रॉस ऑल कैंपसेस, उसमें आप एल कैट की प्रिपरेशन भी कर सकते हैं, विच इज़ ड्यू ऑन दी 18th ऑफ फरवरी, एंड अच्छा. सैट So you मार्च की join now, प्रिपरेशन भी you कर सकते join हैं. now and you have about 6 weeks to do the course. एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली Correct, correct, correct. Or they could also do the IBA crash course, by the way. Yes, एब्सोल्युटली that's a एब्सोल्युटली. great option as well. So you can do the IBA crash course. We just recently started our IBA crash courses. You can join that, and we will prepare you for the IBA test, and you can also then take the LCAT with that. Okay, so remember the LCAT is actually a lot easier than the IBA test. The IBA test is usually tougher. What is the Anis Hussain advantage? Well, the Anis Hussain advantage is us, Alhamdulillah, 4 brothers, joint experience of plenty of years, Alhamdulillah, as you can see. Uske alawa, we have Hazik, Badr, Bilal, also very experienced teachers working with us.
very dedicated teachers, all professional teachers, chosen teaching as a profession because they love teaching. And also Aisha, Sadia, and Nusrat. Nusrat, by the way, is my elder sister. She is also a teacher. So you can see lots of teachers in the family, Alhamdulillah, and lots of other great teachers associated with us. We work together to make sure that you get the best possible training for your admissions test. Right. Any other questions? Do you offer courses for the LMAT test? I'm assuming you're talking about the LUMS LMAT. Yes, you can take the GMAT classes with us. That will prepare you for the LMAT as well. So that's for the LMAT. Hadia, okay, thanks. January 1st is what I should keep in mind. Yeah, you should join as quickly as possible. Why wait for January 1st? Just call us Absolutely. tomorrow and join our courses. TKG, so what are our contact details? Well, this is our website, www.anisasan.com. Our email address is info@anisasan.com. And these are our cell phone numbers at the bottom. You can take a screenshot and you can call us, or just visit the website and pick up the numbers from there and call us from there. Right. And if you want to write to me or write to Irfan, you can just email me, salman@anisasan.com or irfan@anisasan.com, and we will reply to your email, inshallah. And if you want to have a conversation with us, write to me an email, and I'll share your phone number and we'll call you back, or you can call us directly on our phone numbers as well. That's it. Any other questions to ask, guys? Hadia, Hadia, do you offer absolutely. online classes? Well, we just spoke about that, Hadia. We said all our courses are offered online as well. So you can join the online version. Yes, absolutely, 100%. अगर आप शहर में कराची में ही हैं, तो बेहतर है कि आप कैंपस आ जाएं, या एटलीस्ट कुछ क्लासेस और कैंपस पे ले लिया करें. बट अगर आप कराची में नहीं है या पाकिस्तान में नहीं है, तो फिर ऑनलाइन एब्सोल्युटली 100% you can do it. Okay. We've had students regularly joining from outside Pakistan for our online courses as well. एब्सोल्युटली, बल्कि अब तो जब से मैं कनाडा में हूँ पिछले तकरीबन कोई साल भर से, तो आई एम टीचिंग ऑल ऑफ माय कोर्सेज ऑनलाइन. बल्कि अब तो अल्लाह अल्लाह का शुक्र है कि वी हैव अ वेरी स्ट्रॉन्ग reputation यहाँ पे कनाडा में भी. So a lot of students from Canada, Canadian students have been studying with us online. Students from America have been studying with us online. So online is the way to do it. So I spend a lot of time on my computer just teaching online. Acha ji, from when does your preparation start for November and December? Well, ideally speaking, our courses are 3 months long. So अगर November का test है, तो 3 महीने पहले उसे शुरू हो जाएंगी क्लासेस. सो आप समझ लीजिए कि तकरीबन फर्स्ट वीक ऑफ अगस्त अगस्त. अगस्त बट में शुरू हो जाएंगी. आइडियली हम रेकमेंड करेंगे कि आप अपना जब फर्स्ट ईयर या मैट्रिक या इंटरमीडिएट जो भी एग्जाम देते हैं वो दे के फारिग हो जाते हैं, यानी कि जून के महीने में, तो आप फर्स्ट वीक ऑफ जुलाई से ज्वाइन कर लें. 3 महीने कॉम्प्रिहेंसिवली प्रिपेयर करें एंड देन सेट अ टारगेट डेट के किस डेट को आपको सैट देना है. बिल्कुल, एब्सोल्युटली. सो बल्कि मैं तो ये कहूँगा कि ये अगर आपने नवंबर के में टेस्ट देने का इरादा है, तो आप कोशिश करें कि आप अगस्त की टेस्ट की प्रिपरेशन करें. आप एक टेस्ट पहले की प्रिपरेशन करें, ताकि आपके पास फिर एक्स्ट्रा टाइम हो. अगर आप हमारे साथ क्लासेस रीडू करना चाहते हैं, तो उसके तो कोई एक्स्ट्रा चार्जेस है ही नहीं. आप बैठ के रीडू कर लीजिए और आपकी तैयारी हो जाएगी. ठीक है जी. बल्कि बेहतर तैयारी हो जाएगी तो ज़्यादा करें ना भाई. आप क्यों अपने आप को बिल्कुल एंड मोमेंट पे कर रहे हैं? और अगर आप, ये भी एडवांटेज है कि आपने खुद 3 महीने हमारे साथ तैयारी की, फिर मजीद 1 डेढ़ महीना खुद प्रैक्टिस की और एक्स्ट्रा क्वेश्चंस की प्रैक्टिस की, जितना अच्छा स्कोर लेके आएंगे उतना फायदा होगा. सो माइट एज वेल डू इट. और या देखें, यूनिवर्सिटी अप्लाई कर रहे हैं, मैं तमाम लोगों से यही कहता हूँ कि दिस इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट ईयर ऑफ योर एजुकेशनल लाइफ. यहाँ पे अगर आपने थोड़ी सी एक्स्ट्रा मेहनत कर ली और सही जगह आपने एडमिशन ले लिया, this can mean the difference between being here versus being there. It's a huge difference. So might as well take advantage of this particular year. उसको इस्तेमाल करें properly. यहाँ पे दूसरी चीज़ों को कट डाउन करें और फोकस करें इस चीज़ पे. Right? एब्सोल्युटली. अच्छा जी, can I give SAT after intermediate? फराह खान का सवाल है. बेटा, you can give it whenever you like, but obviously बेहतर ये है कि आप इंटरमीडिएट के फर्स्ट ईयर में दे दें, ताकि आपका टाइम बचे. अगर आप गैप ईयर पे हैं और देना चाहते हैं, आपको सैट मना नहीं करेगा. देयर इज नो एज लिमिट ऑन इट. यू कंप्लीट योर इंटरमीडिएट, फाइन. यू वांट टेक इट नाउ, एब्सोल्युटली यू कैन डू इट. सो दैट्स हाउ इट इज सपोज्ड टू बी.
right? Any other questions to ask us? Please let me know. हमारा टारगेट था 45 minutes to 1 hour का. अल्हम्दुलिल्लाह हमने 1 घंटा और 20 मिनट कर लिया इरफान जी. अच्छा जी, चलें. Perfect, जी. Can I call you for some counseling? हादिया फारूक कह रही है जी, absolutely बेटा, you can email me. मेरा email address है salman@anishusain.com. इरफान का है irfan@anishusain.com. सलमान की स्पेलिंग सिंपल सी SALMAN है, इरफान की IRFAN है. तो आप हमें ईमेल कर सकते हैं और हम आपसे कोऑर्डिनेट कर लेंगे और काउंसलिंग आप ही कर लेंगे इंशाल्लाह. ठीक है बेटा. Okay, Ji, that's about that. Thank you so much for being with us. We wish you all the best in your preparation. और आपके लिए हम soon वो जो मैंने आपको promise किया है, I'm going to bring you that session where I'm going to talk about how the SAT scores have applied in the IBA test and what kind of an impact it has had over the years on admissions in the previous 5 to 6 years. That'll be an interesting session because काफी data है जो मैंने extract किया है. और मैं उसके ऊपर काम करके आपसे डिस्कस करूंगा इंशाल्लाह. ओके जी, ग्रेट. थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद अस. जजाकल्लाह फॉर योर कमेंट्स. थैंक यू इरफान फॉर जॉइनिंग मी. Thank you. Pleasure meeting all of you. Best of luck. See you soon, प्लेजर मीटिंग inshallah. यू एज वेल इरफान. प्लेजर मीटिंग यू एज वेल. ओके जी, अल्लाह हाफिज. अल्लाह हाफिज जी. अल्लाह Okay, हाफिज. जी. Allah Hafiz.